Hare Krishna. Welcome back to my YouTube channel English Temple with Yashwant. I'm Yashwant Kumawat, certified soft skills TTT and English language trainer. In today's video, I'm going to conduct a 2-hour session on spoken English, on communicative English, which you call spoken English. And yes, in this video, I am going to reveal the secret why a person could not learn English even after studying it for more than 15-18 years. This is going to be an eye-opening session. And I know that you are having a number of questions about English language learning. So our presentation has been designed in such a manner that almost all the doubts regarding language learning that you are having inside your head will be busted. 100% I'm sure that all the doubts that you are having inside your head will be busted by the end of this session. Right? So stay connected till end. And this session is going to go on in 2 phases. First phase में हम लोग cover करते हैं. In first phase, what we cover is why a person could not learn English even after studying it for 15-20 years. Okay, and in second phase, I'll cover how can you learn English language, how can you get a craft on English communication, right? So let me speak in Hindi. ये एक eye opening session होने वाला है और आपको मैं सीक्रेट रिवील करूंगा कि इतने लंबे समय तक इंग्लिश पढ़ने के बाद भी आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हैं. 15-20 ईयर्स तक आप इंग्लिश पढ़ते हैं ऑन एन एवरेज 12 ईयर्स इन स्कूल, 2 to 3 years in colleges, and maybe in case if you go for a number of competitive exams, so again you study English for 2 to 3 years क्योंकि 25% वेटेज इंग्लिश का होता है. So इतने लंबे समय तक पढ़ने के बाद भी, यानी अपनी जिंदगी का 1/3 पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में लगाने के बाद भी इंग्लिश इंप्रूव क्यों नहीं हो पाता है. So I am going to reveal the secret. It is going to be eye-opening seminar, and I'm 100% sure it is going to add value in your current understanding of the language by the end of this session. So stay connected. Now let me move on. So very short introduction about myself. Let me tell you something. I'm certified soft skills TTT and English language trainer. I've been training the people on English communication soft skills for the last 10 plus years. As far as my education is concerned, I'm graduate from computer science and postgraduate from business administration. And yes, I've done one international certification, that is professional programming soft skill training, that is from Scottish Qualification Authority, and one more certification I have done, that is national certification from National Accreditation Board of Education Training, Government of India, and I did TTT certification from this organization. And in the last 10 plus years, I've been training the people. I'm training the students who are graduates, undergraduates, postgraduates, even working professionals. Because I love training. I love facilitating the candidates. I always enjoy teaching. I give my 100% to it. This is what is something that I always live. Okay. So very short introduction about me. The domains that I provide expertise in are English communication, interview skills, writing skills, pronunciation development, soft skills. Soft skills means dealing with the people. In every interview, 85% weightage of your entire selection is based on soft skills, okay? The most demanded skill set in the modern workplace today. Okay. Now, speaking etiquette, presentation skills, and grammar coverage. These are the domains. Students somewhere want to get craft. So I help them. Okay. So this is the title. कि why couldn't you learn English even after studying it for more than 15 years? जानिए 15 वर्षों से ज़्यादा समय तक इंग्लिश पढ़ने के बाद भी इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाए? Okay, these are the points I'm going to cover. Let me tell you in short. I'll tell you the ultimate purpose of the language. I'll tell you the ultimate purpose of the language. I'll give you analysis. How can you analyze success? Okay, through English language in all the domains. Regardless of your domains, English communication is needed. You will get to know. Okay, 2 approaches of learning a language. Difference between grammar and spoken. Yes, most of the students think that in case if I work on grammar, my spoken will be improved, but that's not possible. Okay, some students think that in case if I work on my English communication, my grammar will be covered. That's not possible. These are 2 different branches. You will get to know in today's session in detail. इतनी सारे secrets reveal करूँगा students. You will be surprised to get to know all these things. Okay, some eye-opening facts I'm going to tell you. Why grammar experts are not fluent. Oh my God, it's a big question. Why grammar experts are not fluent and effective speakers. I will tell you the role of conscious and subconscious mind in terms of language learning. लैंग्वेज लर्निंग में कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का रोल क्या है मैं आपको बताऊंगा और आपको ये प्रूव करूंगा कि ग्रामर का एक्सपर्ट होने के बाद में आपका लैंग्वेज क्यों स्पॉइल हो जाता है. ओके, स्टे कनेक्टेड टिल एंड. And in the second phase, I'm going to cover how we learn the language. So language के levels क्या हैं? Simple sentence structure building skills, complex sentence structure building skills, expressions for fluency building, and ultimately the sounds. Okay, why learning language? Understand. Language क्यों सीखें? So in the last 10 plus years, the common reasons that I've come across are
पिछले 10 सालों में जो कॉमन रीजंस जिनको मैं जान पाया हूं, जो स्टूडेंट्स इन रीजंस के साथ में आते हैं, वो रीजंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आई एम गोइंग लिटिल फास्ट इन दिस केस। एकेडमिक्स टू जॉब्स। कैंडिडेट ने कहा कि मेरा एकेडमिक्स कंप्लीट हो गया है, मुझे जॉब करना है, तो जॉब के लिए मुझे इंटरव्यू फेस करना है, इसलिए मुझे लैंग्वेज सीखना है, इज वन ऑफ द रीजंस। ओके, गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यूज। अगर आप ऑफिसर रैंक के एग्जाम्स की बात करें, आईएएस, आरएएस, सीडीएस, एनडीए और तमाम तरीके के ऑफिसर रैंक के जितने भी एग्जाम्स हैं, उसमें रिटन यानी एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर होने के बाद में यू आर ऑलवेज इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है। सो उसके लिए भी कैंडिडेट्स लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। एंड द थर्ड रीजन दैट आई हैव कम अक्रॉस इज कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर XYZ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड 25% वेटेज, मेरे सिलेबस में जो 25% वेटेज है वो इंग्लिश का है। सो आई वांट टू क्रैक माय रिटन एग्जाम, सो दैट्स व्हाई आई नीड टू वर्क ऑन माय इंग्लिश, इज वन ऑफ द रीजंस। प्रोफेशनल्स लुकिंग फॉर प्रमोशंस। अभी तक जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स को मैं ट्रेन कर पाया हूं, उनकी हेल्प कर पाया हूं, उनका कॉमन क्वेश्चन ये है कि यशवंत, अगर मेरा इंग्लिश स्ट्रांग होता सो आई वुड हैव टेकन प्रमोशन। मैं तो बहुत सारे प्रमोशन पहले ही ले लेता, लेकिन केवल इंग्लिश की वजह से रुका हुआ हूं। सो दिस इज द कॉमन स्टेटमेंट, दैट्स व्हाट दे स्पीक। ओके, हायर एजुकेशन। एवरीबॉडी नोज इन हायर एजुकेशन आप पास कोर्सेज को छोड़ दीजिए, बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे पास कोर्सेज को छोड़ दीजिए। इनके अलावा जितने भी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोफेशनल प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर ऑफर्ड इन द मीडियम इंग्लिश। अंडरस्टैंड, दे आर नॉट इन हिंदी। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज। एवरीबॉडी नोज आज वर्ल्ड के 60% बिजनेसेस, इंटरनेशनल बिजनेसेस जिस लैंग्वेज में ऑपरेट होते हैं वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आज आपका डिजिटल इमेज बहुत कुछ आपके बारे में प्रोजेक्ट करता है, बहुत कुछ आपके बारे में कहता है। सो आपका जो सोशल मीडिया पे जो आपका प्रोफाइल है, दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू। तो आपका कम्युनिकेशन उस पे कैसा दिख रहा है, कैसा प्रोजेक्ट हो रहा है, कैसा शो हो रहा है, दैट्स व्हाट अगेन मैटर्स। दैट्स व्हाट इज समथिंग दैट रियली मैटर्स, रियली मैटर्स। ऑनलाइन एजुकेशन। आफ्टर कोविड वर्ल्ड के किसी भी कोने से कोई भी ट्रेनर, कोई भी कोच, ओके, आपको जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, हिज कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश, नॉट हिंदी और नॉट एनी अदर रीजनल लैंग्वेज। अंडरस्टैंड? ओके, ट्रैवलिंग। सम पीपल लर्न इंग्लिश फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैवलिंग। कुछ लोग समझते हैं कि यस, लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग फैक्ट कि सर मेरे को एवरीडे लाइफ के लिए इंग्लिश सीखना है। सीखना क्यों है? द पॉइंट इज समवेयर ऐसा लगता है कि इंग्लिश नहीं बोल पाता है तो ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा नहीं है। आई एम टेलिंग यू, पीपल हैव द परसेप्शन अबाउट द पर्सन हु डजंट कम्युनिकेट इंग्लिश, समवेयर लगता है कि पढ़ा लिखा ही नहीं है। पीपल थिंक सो, इसलिए भी लोग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। वन ऑफ द रीजंस। सब कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश फैशन हो गया है, स्टेटस सिंबल हो गया है, लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया है। दैट्स व्हाई पीपल वर्क ऑन इंग्लिश कम्युनिकेशन। टचिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। Yes, in case if you want to settle in another country or you want to take admission in foreign country, so you need to go through some certain exams. You have to crack some certain exams. TOEFL, TOEIC, IELTS, International English Language Testing System. तो आप किसी न किसी एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो in case if you want to settle in any country for any purpose, ultimately आपको इंग्लिश का सामना तो करना ही पड़ेगा, right? So these are the common reasons that I've come across in the last 10+ years. से common reasons. And now my question to all of you all is, आप कितने reasons से relate करते हैं? How many reasons do you relate to? 1, 2, almost all. 1, 2, almost all. You would say कि लगभग सारे रीजन हैं जिनसे मैं रिलेट करता हूं। नाउ माई स्टेटमेंट इज, एक भी रीजन नहीं है लैंग्वेज सीखने का। व्हाट डज दैट मीन? ट्रस्ट मी, एक भी रीजन नहीं है लैंग्वेज सीखने का। लेट मी टेल यू हाउ। ये कोई रीजन नहीं है, ये सिर्फ माध्यम है। अल्टीमेटली लैंग्वेज का रीजन क्या है? लेट मी टेल यू। देखिए, लैंग्वेज क्यों सीखें, लैंग्वेज से कहां जाएंगे हम, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला समझते हैं। अंडरस्टैंड? Vision is the answer of where. Always understand. Vision is the answer of where. कि where means आप अपनी लाइफ में कहां जाना चाहते हैं. That is the answer of vision. कहां अपने आप को देखते हैं ultimately, right? That is vision. इससे ऊपर चलते हैं. Now you see, mission is the answer of how. कि जहां आप जाना चाहते हैं वहां कैसे जाएंगे. आप जब अपने विजन को ब्रेक डाउन करते हैं into stages and steps, तो दैट इज द आंसर ऑफ मिशन। कि क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप अल्टीमेटली जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचते हैं। सो कहां जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेजेस क्या हैं, राइट? दैट कम्स अंडर मिशन। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। जहां आप जाना चाहते हैं वहां कैसे जाएंगे, आप स्टेजेस डिफाइन करते हैं और स्टेप्स डिफाइन करते हैं, और हर स्टेप पे इक्वली सक्सेस लेना जरूरी है। नाउ उस फर्स्ट स्टेप पे इक्वली सक्सेस लेने के लिए क्या करते हैं आप? क्या? द आंसर ऑफ व्हाट? आपका 24 आवर्स का ब्लूप्रिंट क्या है? आपका जो ब्लूप्रिंट है 24 आवर्स का, वो क्या है? व्हाट इज योर 24 आवर ब्रेकअप? आपके 24 घंटे का ब्रेकअप क्या है? व्हाट इज योर एंगेजमेंट इन दोस 24 आवर्स? सो क्या करते हैं आप 24 घंटे में इस फर्स्ट स्टेप को क्लियर करने के लिए? दैट इज द आंसर ऑफ ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंड व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये?
डायरेक्शन बाहर की तरफ होना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं स्टूडेंट्स कि अल्टीमेटली लैंग्वेज क्यों सीखें, कहां जाएंगे हम, अंडरस्टैंड, कहां जाएंगे हम, लैंग्वेज क्यों सीखें हम, क्या विजन है लैंग्वेज सीखने का? लेट मी टेल यू, लैंग्वेज का जो अल्टीमेट पर्पस है, लैंग्वेज का जो विजन है, भाषा का जो धर्म है, वो धर्म है मैसेज देना और रिसीव करना। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ धर्म। ये जो फैन मेरे ऊपर लगा हुआ है, ये हवा देने का काम नहीं करता। कैन आई कॉल इट फैन? यू विल से नो। आपने जो वॉच पहन रखा है, अगर वो टाइम नहीं दिखाती, बाकी सब कुछ करती है, कैन आई कॉल इट वॉच? यू विल से नो। आप जो चीनी खाते हैं, जो शुगर आप खाते हैं, उससे मैं स्वीटनेस हटा लूं, कैन यू कॉल इट शुगर? यू विल से नो। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं, जब ये प्रोडक्ट्स बनते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनके साथ जनरेट होते हैं, आप इन्हें हटा नहीं सकते। द मोमेंट यू रिमूव दिस एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट की जो उसका जो नेचुरल टेस्ट है, उसकी जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उसकी जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है, वो सब खत्म हो जाएगी। इन द सेम वे लैंग्वेज एक कोड है, और अल्टीमेटली जो लैंग्वेज का पर्पस है, जो धर्म है, वो है मैसेज देना और रिसीव करना। अंडरस्टैंड? और यहां पहुंचना है। अगर आप किसी लैंग्वेज पे काम करते हैं और अगर आप मैसेजेस डिलीवर नहीं कर पाए और रिसीव नहीं कर पाए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज फ्यूटाइल, सब वेस्ट है। ओके, अब हम चलते हैं, ये विजन है लैंग्वेज का। नाउ वी मूव ऑन टू मिशन, कि कैसे मैसेज देना और रिसीव करना पॉसिबल हो पाएगा। नाउ मैसेज देना और रिसीव करना पॉसिबल हो पाएगा थ्रू रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। दिस इज आंसर ऑफ मिशन। हाउ, कैसे? अभी देखिए, मैं जो स्पीक कर रहा हूं, आप उसे क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं। इन केस इफ आई राइट समथिंग, व्हाट डू? यू रीड इट। तो जो मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। नाउ यू आंसर वन क्वेश्चन। आप जहां कहीं पे भी इंग्लिश स्टडी करते हैं, मैं आपको केवल आईना दिखा रहा हूं, अंडरस्टैंड? आप जहां कहीं पे भी इंग्लिश स्टडी करते हैं, आपका जो भी सिलेबस होता है इंग्लिश का, स्पेशली यू हैव द सिलेबस ऑफ ग्रामर, नॉट स्पेशली, मेनली यू हैव द सिलेबस ऑफ ग्रामर। Imagine you go to X Institute, you go to Y Institute, you go to Z Institute. Okay, you say I want to work on my English because I want to crack this exam, and ultimately you get certain topics in your syllabus, and all the topics are related to your grammar. So you complete the syllabus, you think that your preparation is done. Not like that. Let me tell you. क्या आपका स्पीकिंग का सिलेबस होता है? नो। क्या आपका रीडिंग का सिलेबस होता है? नो। क्या आपका स्पीकिंग का सिलेबस होता है? नो। क्या आपका लिसनिंग का सिलेबस होता है? नो। कर क्या रहे हैं आप? भाषा का धर्म है मैसेज देना और रिसीव करना, जो कि पॉसिबल है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग के थ्रू, एंड अल्टीमेटली यू डू नॉट हैव द सिलेबस ऑफ इट। थिंक अबाउट इट, थोड़ी बुद्धि लगाइए। मैं तो जो एग्जामिनेशन बॉडीज हैं, यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, जितने भी एग्जामिनेशन बॉडीज हैं, मैं तो इन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इंग्लिश सिलेबस का हिस्सा है, और लैंग्वेज का धर्म अगर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग के थ्रू मैसेज डिलीवरी पे, मैसेज देना और रिसीव करने पे पहुंचना है, मैं तो सिर्फ सजेशन ये देना चाहूंगा कि अल्टीमेटली लैंग्वेज के धर्म से दूर नहीं जाएं। अगर लैंग्वेज सिलेबस का हिस्सा है, सो अल्टीमेटली ऑल द कैंडिडेट शुड बी टेस्टेड ऑन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इन कंपोनेंट्स को उससे हटा देता हूं, सिलेबस का अगर हिस्सा नहीं है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, आपके इंग्लिश सिलेबस का हिस्सा नहीं है, देन यू आर गोइंग बियॉन्ड द पर्पस, यू आर अवे फ्रॉम द पर्पस। थिंक मैं केवल सजेशन करना चाहूंगा रेस्पेक्टेड बॉडीज को, they should be including this. Anyway, now we move on to the objective. Now objective क्या है? So that's why, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा that why have they been, have they all been the part of your syllabus so far? You will say no. You say मैं इंग्लिश की स्टडीज, इंग्लिश को स्टडी कर रहा हूं, उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स ये हैं मेरे लिस्ट में। Okay, so during your studies you find a number of topics in the list. So reading, writing, speaking, listening का सिलेबस ही नहीं है, कमाल है। लैंग्वेज का धर्म ये है और ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, because language is the combination of these 4 skill sets. Now we move on to objective. So क्या करें हम अब इसके लिए? ये ऑब्जेक्टिव पे पहुंच गए, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। सो देखिए, 2 मेथड्स हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं। लेट मी टेल यू क्लियरली, दुनिया में आप किसी भी लैंग्वेज पे काम करना चाहते हैं, दुनिया में अगर आप किसी भी लैंग्वेज पे काम करना चाहते हैं, नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, 2 ही मेथड्स हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं। और ये दोनों मेथड्स क्या हैं? ये दोनों मेथड्स क्या हैं? लेट मी टेल यू। ओके, मैं इन दोनों मेथड्स पे बात करूं उससे पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। विदाउट ग्रामर देयर इज नो लैंग्वेज। आई एम गोइंग टू टेल यू 2 फैक्ट्स। बिना ग्रामर कोई लैंग्वेज नहीं है। विदाउट ग्रामर देयर इज नो लैंग्वेज। अगर किसी को लगता है कि बिना ग्रामर फॉलो किए हुए मैं अपना मैसेज डिलीवर कर सकता हूं, अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट डू दैट। आपका मैसेज स्पॉइल हो जाएगा, टीडियस हो जाएगा, एम्बिगुअस हो जाएगा, लिसनर तक वो नहीं पहुंचेगा जो आप देना चाहते हैं। एनी मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे टू द लिसनर विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द लिसनर इन द सेम वे यू वांट टू कम्युनिकेट। ही विल नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द सेम मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द लिसनर। अंडरस्टैंड? अगर आपका मैसेज ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है,
your message may be distorted. He may not get exactly what you want to convey. So बिना ग्रामर कोई लैंग्वेज नहीं है, अंडरस्टैंड. इसका मतलब है ग्रामर सीखना पड़ेगा? Undoubtedly yes. Now look at the next line. Studying grammar kills your speaking skills. Oh my God. And this is not Yeshwant. This is AJ Hogue. This is AJ Hogue. This is AJ Hogue. Understand? Who is AJ Hogue? AJ Hogue is an international English language trainer from America, and he has got his own company in the name of Effortless English. And yes, he has got a book in the name of Effortless English. You can search it on internet. And the title of the chapter number 10 is this. उनकी एक बुक है, उस बुक का चैप्टर नंबर 10 का टाइटल है स्टडिंग ग्रामर किल्स योर स्पीकिंग स्किल्स. एंड यस, इन द लास्ट 10 plus years I have experienced this, that if you master English through traditional pattern, traditional approach, you ultimately spoil your language. आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये ट्रेडिशनल पैटर्न दीमक की तरह वर्क करता है. आई एम गोइंग टू प्रूव इट इन टुडेज सेशन. स्टे कनेक्टेड. ये आपके सबकॉन्शियस में दीमक की तरह काम करता है. इट वर्क्स एज टर्माइट्स. It will never ever let you speak well, fluently. It will never ever let you be fluent and effective speaker. Understand my point. I'm going to prove it. Stay connected till last. Okay. So this statement is correct and the statement mentioned above is again correct. दोनों sentences correct है. आपको लगता है कि आप फंस गए? Yes, आप फंस चुके हैं. बिना ग्रामर कोई लैंग्वेज नहीं है. बात तो ये भी ठीक है. और ग्रामर पढ़ने से स्पीकिंग स्किल्स खत्म हो जाएगा. ये भी 100% करेक्ट है. क्या करें? What is the solution? Now, कुछ इस तरीके से समझते हैं. एक दिन मैं ऑटो से ट्रेवल कर रहा था. I was sitting in an auto and the road was zigzag. Lots of pits and puddles were there on the road. यानी गड्ढों वाला रोड था, बहुत सारे गड्ढे थे रोड पे और मैं ऑटो में बैठा हुआ था. Now, सब लोग जानते हैं ऑटो में बैठा हूं, अगर मैं बैठा हूं और गड्ढों वाला रोड है तो मेरे बैग का क्या हाल होगा. So I was just sitting in an auto and I was experiencing धड़ 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 धड़. I said, come on, stop it. I just want to get the auto. तुमने मेरा पूरा बैग तोड़ दिया यार, पूरा कमर तोड़ दिया मेरा. I just want to get the auto. I got off the auto and I came aside और मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन रिलीज करी. उसी गड्ढों वाली रोड से एक ऑडी कार जा रहा है और मैंने कहा आज इस ऑडी कार वाले को पता चलेगा गड्ढों वाली रोड पे चलने से कमर का बैग का क्या हाल होता है. उसने सुन लिया. उसने शीशा डाउन किया और मुझे कहा आपको पता नहीं है मेरी गाड़ी में इतने अच्छे सस्पेंशन लगे हुए हैं, मुझे जर्क और झटके महसूस नहीं हो रहे. जिंदगी में गड्ढे खत्म नहीं होते, गाड़ी बदलनी पड़ती है. यहां पे गड्ढों वाली रोड आपकी ग्रामर है. आपका ग्रामर खत्म नहीं होगा स्टूडेंट्स. आई एम गोइंग टू चेंज द व्हीकल. मैं आपका व्हीकल बदलने जाऊंगा. मैं आपका व्हीकल बदलने वाला हूं. मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है कि अभी तक आप ऑटो में बैठे हुए थे. यू नो व्हाई? Because at the age of 18, 19, 20, 25, 30, you people are struggling with the language. Still at the age of 25, 30, 35, you are struggling with the language. You will 100% accept that you were sitting in an auto. Now let's see कि ये दोनों vehicles क्या हैं. Let me reveal the secret now. देखिए लैंग्वेज सीखने के दो मेथड्स हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं. आई हैव स्पोकन दिस बिफोर टू यू. देयर आर टू मेथड्स व्हिच आर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड बाय व्हिच लैंग्वेज इज लर्न्ड. एक अप्रोच का नाम है रूल अप्रोच एंड द सेकंड अप्रोच इज ओके, रूल अप्रोच को हम रीजनिंग ऑफ इंग्लिश भी बोलते हैं एंड द सेकंड अप्रोच इज यूसेज अप्रोच. ये दोनों मेथड्स हैं. नाउ समझते हैं क्या है ये. आई एम गोइंग टू गिव इनफ टाइम. You have to understand deeply. If you have got any question, you can write your question in the comment box. So pay attention. देखिए रूल अप्रोच क्या है. इमेजिन कीजिए किसी कैंडिडेट ने इंग्लिश ग्रामर बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया है. उसने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल्स, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, तमाम तरीके के टॉपिक्स पर्सन ने स्टडी कर लिए हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, क्या होता है, उसने मान लीजिए 500, 600, 1000 के आसपास उसने रूल्स मेमोराइज कर लिए हैं. और क्या होगा जब भी वो किसी एग्जाम में बैठता है, नाउ एवरीबडी नोज, जब भी वो किसी एग्जाम में बैठता है तो एग्जाम में क्वेश्चंस अपीयर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस. सब लोग जानते हैं जब भी आप किसी एग्जाम में बैठते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, सो यू सी द क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ ABCD. आई मीन क्वेश्चंस हैव ऑप्शंस, दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ABCD. तो यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमेशा होते हैं. नाउ व्हाट डू, आप क्या करते हैं, आपके पास में 500, 600, 1000 के आसपास रूल्स हैं. जब भी आप किसी एग्जाम में बैठते हैं, आपके सामने क्वेश्चन जैसे ही अपीयर होता है, व्हाट डू, आपने पूरा मेमोरी सर्च आउट करने लगते हैं.
The moment the question is there before you, the moment the question is there before you, the moment you start reading the question, at the same time you start searching your memory and you ultimately try to find out that which rule fits to the question. आप पूरी मेमोरी सर्च आउट करते हैं while reading the question. क्वेश्चन को पढ़ते वक्त पूरी मेमोरी सर्च आउट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है. इसमें नाउन रूल अप्लाई हो रहा है, एडजेक्टिव लग रहा है, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लग रहा है, या एडजेक्टिव लग रहा है, या एक्टिव पैसिव लग रहा है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट लग रहा है. आप अल्टीमेटली कोई ना कोई रूल अप्लाई करते हैं और राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेते हैं. अग्री डिसएग्री? आई एम टेलिंग यू 99.9% लोग इसी मेथड से लैंग्वेज स्टडी करते हैं. आई एम टेलिंग यू 99.9% पीपल आर गोइंग थ्रू द सेम अप्रोच. नाउ यू माइट बी वंडरिंग, जब हर कोई सेम पैटर्न से काम कर रहा है, इसी अप्रोच से वर्क कर रहा है, तो उसमें कुछ तो बेनिफिट होता होगा. यस, अनडाउटेडली. लेट मी टेल यू, अगर आप इस मेथड से, आपका मतलब है एवरीबडी, सो हर कोई जब भी इस मेथड से वर्क करता है, रीजनिंग मेथड से जाता है, तो उसमें कौन सा स्किल बिल्ड होता है? इसमें आपका एनालिटिकल स्किल बिल्ड होता है. योर एनालिटिकल स्किल्स इज इंप्रूव्ड. ओके, व्हाट डज दैट मीन? क्या मतलब है एनालिटिकल स्किल का? सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो आप किसी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जो आपको मिलता है, आप उसका ऑपरेशन कर देते हैं. पूरा अपना आप इंजीनियर बन जाते हैं, उस सेंटेंस पे पूरा अपना इंजीनियरिंग लगा देते हैं और अल्टीमेटली आप उसके इतने टुकड़े कर देते हैं, आप उसका इतना डीप एनालिसिस कर लेते हैं कि अल्टीमेटली फिर वो मैसेज नहीं रहता, फिर वो केवल चंक्स रह जाते हैं. नाउ लेट मी टेल यू हाउ डू डू दैट. आप पूरे सेंटेंस का ऑपरेशन कर देंगे. आप जैसे आपके सामने सेंटेंस आता है, जब भी आप इस अप्रोच से जाते हैं, लेट मी शो यू हाउ डू डू दैट. देखिए, व्हाट इज द एटीट्यूड? क्या एटीट्यूड है उस पर्सन का? क्या एटीट्यूड होता है उस? एटीट्यूड मींस देखने का नजरिया. तो जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आता है, तो आपका एटीट्यूड यानी आपका उस सेंटेंस को देखने का नजरिया क्या होता है? लेट मी टेल यू. आप क्या करते हैं, जैसे आपके सामने एक सेंटेंस आया, तो आपकी एनालिसिस शुरू हो गई. एनालिसिस, अभी मैंने बताया, रूल अप्रोच में एनालिटिकल स्किल्स बिल्ड होती है. ध्यान रखना, एनालिटिकल स्किल्स जब भी मैं कहता हूं, कई बार स्टूडेंट्स को डिफरेंटली ले जाते हैं. दे टेक इट डिफरेंटली, दे मिस्टेक इट फॉर डिफरेंट मीनिंग. अंडरस्टैंड? जब भी मैं कह रहा हूं एनालिटिकल स्किल्स का मतलब है सेंटेंस के एनालिसिस, किसी टॉपिक, किसी मुद्दे पे एनालिसिस नहीं. दैट इज नीडेड, वो तो जरूरी है. एनालिटिकल स्किल्स एसेंशियली आप में होना बहुत जरूरी है. अगर आप किसी मुद्दे पे एनालिसिस नहीं करते हैं, तो फिर इट सीम्स दैट समवेयर यू डू नॉट हैव क्रिटिकल थिंकिंग, यू डू नॉट हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, कॉग्निटिवली यू आर नॉट वेरी स्मार्ट. तो आपके पास में एनालिटिकल स्किल्स होना बहुत जरूरी है. लेकिन हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एनालिसिस ऑफ ए सेंटेंस. एक फैक्ट मुझे बताएं आप, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी क्रिएचर्स हैं, ह्यूमन बींग्स तो हैं ही, ह्यूमन बींग्स के अलावा इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी क्रिएचर्स हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, जितने भी हैं क्रिएचर्स, आप मुझे बताएं, वो जिस भी भाषा में बात करते हैं, जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं, क्या बैकग्राउंड में किसी ग्रामर को रिकॉल करते हैं? नॉट एट ऑल. अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो कभी स्कूल नहीं गया, वो टिपिकली हिंदी नहीं जानता है, लेकिन वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करता है, डज ही नो ग्रामर इन द बैकग्राउंड? नो. अंडरस्टैंड वन फैक्ट, नेचुरली जब भी आप कोई बात बोलते हैं, इन द बैकग्राउंड यू नेवर एवर रिक्वायर एनालिसिस. अंडरस्टैंड माई पॉइंट. नेचुरली स्पीकिंग में कभी भी आप एनालिसिस नहीं करते हैं. अगर आपने एनालिसिस शुरू किया, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस अ सिंगल लाइन ऑफ मैसेज. यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट दैट. नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपकी एनालिसिस सेंटेंस ब्रेकिंग पे, चंकिंग पे और उसके एनालिसिस पे आ जाती है. हाउ विल यू बी एबल टू फोकस ऑन द मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे टू द लिसनर? इट इज डिफिकल्ट. तो देखिए, क्या एटीट्यूड होता है उस पर्सन का जो रूल अप्रोच से मास्टरी करता है. लेट मी टेल यू, आपने देखा आई सब्जेक्ट है, विल मॉडल वर्ब हो गया. ओके, मॉडल के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. आगे चल के देखता हूं, एलवाई, अरे ये तो एडवर्ब हो गया. लेकिन फिर एनालिसिस, he proceeds with the analysis, he goes ahead with the analysis. Again he thinks कि मॉडल के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म चाहिए और डेफिनेटली एडवर्ब हो गया. लेकिन एडवर्ब भी वर्ब को क्वालिफाई करता है, तो बात तो ठीक है. मॉडल को भी वर्ब चाहिए, एडवर्ब को भी वर्ब चाहिए. आगे चल के देखते हैं, यहां तक रिलेशनशिप ठीक है. सक्सेस, अरे सक्सेस तो नाउन है, मुझे मॉडल के बाद वर्ब चाहिए और सक्सेस नाउन है, तो इनकरेक्ट हो गया. एंड ही स्पॉट्स द एरर, फिर एरर स्पॉट करता है, फिर इसे करेक्ट करता है, सक्सीड. ओके, फिर आगे और क्रॉस चेक करता है कि कहीं आगे तो एरर नहीं है, फिर और एनालिसिस अपनी अप्लाई करता है. सक्सीड इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट की जगह पे फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे हमेशा नाउन बैठता है, तो इसका मतलब कोई नाउन नहीं होगा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद. अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखनी है तो या तो एडवर्ब चाहिए या फिर प्रेपोजिशन चाहिए. फिर देखता है एडवर्ब यहां आ चुका है, वाओ, प्रेपोजिशन मिल गया.
और preposition के बाद में हमेशा preposition is followed by always an object and in place of object always noun sets. Again, let me tell you in Hindi. कोई भी preposition है उसके बाद में हमेशा object होता है, object की जगह पे हमेशा noun बैठता है. तो आगे चल के देखते हैं, पर्सन फिर से चेक करता है कि एग्जाम नाउन है. यस, इस नाउन के लिए दोनों वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं. नाउ अल्टीमेटली इस अप्रोच से, इस एटीट्यूड से सेंटेंस को देखने का ये जो आपका एटीट्यूड है, इससे आप बिल्ड क्या कर रहे हैं? आप वर्ड्स की आपस की रिलेशनशिप पे मास्टरी कर रहे हैं. किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, किससे पहले क्या, किसका रिलेशनशिप किससे है, किसका अग्रीमेंट किसके साथ है, किसका डिसएग्रीमेंट किसके साथ है. अल्टीमेटली नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं उनके आपस के रिलेशनशिप पे मास्टरी करते हैं आप. और आप अल्टीमेटली मास्टरी करते क्यों हैं? क्योंकि अब आपको मीनिंग लेना है हिंदी में. अब आप कंप्लीटली मीनिंग ले जाएंगे हिंदी में, मैं अपने अगले एग्जाम में पक्का सफल हो जाऊंगा. आप अल्टीमेटली इस अप्रोच से दो ही काम कर रहे हैं. ध्यान से सुनिएगा, आप वर्ड्स के आपस के रिलेशनशिप पे मास्टरी कर रहे हैं और अल्टीमेटली आप कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव कर रहे हैं हिंदी में, क्योंकि आप मीनिंग हिंदी में ले रहे हैं. लेट मी गिव अनदर एग्जांपल, स्टे कनेक्टेड. लेट मी गिव अनदर एग्जांपल. देखिए, यू माइट हैव स्टडीड इंग्लिश लाइक दिस. आपने इंग्लिश ऐसे पढ़ा होगा. I ate food. आपने इंग्लिश ऐसे पढ़ा होगा, I ate food. ate यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है. क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इसलिए हो गया पास्ट सिंपल. और क्योंकि ये पास्ट सिंपल है इसलिए सेंटेंस का मतलब हो गया मैंने खाना खाया है, खाया था, एक ही बात है. आप मुझे ऑनेस्टली बताएं कि आपके यहाँ जो कंपाइलर लगा हुआ है वो किसे इंटरप्रेट करता है, किसे समझता है, किसे कॉम्प्रिहेंड करता है. यू हैव गॉट अ कंपाइलर ओवर हियर, यू हैव गॉट टू सेंटेंसेस ओवर हियर एट द सेम टाइम. नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क द क्वेश्चन दैट व्हिच वन इज इंटरप्रेटेड बाय योर कंपाइलर हैविंग ओवर हियर. Compiler, okay? I'm using the word compiler. I know that this word relates to computer science, but anyway, you understand कि आपके यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग सिस्टम लगा हुआ है वो किसको समझता है, इसको समझता है या इसको समझता है. ना आपके दो आंसर्स हैं. आपने कहा कि सर मुझे ये समझ आता है. अगर ये समझ आता है आई अप्रिशिएट, बट द क्वेश्चन इज कि क्या जरूरत है कि यहां पे वर्ब सेकंड फॉर्म है इसलिए पास्ट सिंपल है. क्या जरूरत है आपको ये जानने की कि इसमें पास्ट सिंपल है? इफ यू अंडरस्टैंड दिस मैसेज देन व्हाट इज द नीड ऑफ नोइंग व्हाट grammar rule is being applied over here. Last evening I got free from my office a little late, so I got my food packed and I took the food to my home and with my family members I had my dinner. अगर आपको सारी बातें समझ आ गई, भाड़ में जाए, क्यों जाने आप कि इसमें कौन सा टेंस है और कौन सा रूल अप्लाई होता है. क्या जरूरत है अगर आपको मैसेज समझ आ गए. ना आपका सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि नहीं सर मुझे ये समझ आता है. सो अल्टीमेटली आप एक्सेप्ट करेंगे कि आपको ये समझ आता है और आप इसकी हेल्प लेते हैं, आप रूल्स की केवल हेल्प लेते हैं और अल्टीमेटली आप इंटरप्रेट करते हैं, आप कॉम्प्रिहेंड करते हैं इस सेंटेंस को. कमाल है. अगर ये समझ आता है तो रूल क्यों जानूं मैं, और अगर रूल जानता हूं तो अल्टीमेटली इसको कॉम्प्रिहेंड कर पाता हूं मैं. थिंक अबाउट इट. सारा इंग्लिश हिंदी में सीख गया. Let me come back to my PPT. If you want me to do analysis of the next sentence, let me also tell you. एक बार फिर एक और एग्जांपल दे देता हूं कि एनालिसिस का मतलब क्या है, रूल अप्रोच से जाने का मतलब क्या है. देखिए, आफ्टर जैसे आपकी नजर as soon as your eyesight goes on to, as soon as your eyes go on to the word after, तो आपका एनालिसिस शुरू कैसे हो जाता है? आफ्टर. प्रपोजिशन है, ओके. प्रपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट. आगे चल के देखता हूं विजिटर, ऑब्जेक्ट की जगह पे हमेशा नाउन बैठता है. सो विजिटर, उसके लिए ये आपका एडजेक्टिव है लास्ट और ये आपका डिटर्मिनर है. सो प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट, इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट नाउन ऑलवेज सिट्स. फिर आगे चल के देखते हैं, अरे ये तो टेंस मिल गया हमें. तो अगर ये टेंस है तो फिर ये प्रपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि अगर ये टेंस है तो फिर ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये सब्जेक्ट होगा. और अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर ये प्रपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन है. कंजंक्शन जॉइंस टू सेंटेंसेस. सो हियर फर्स्ट सेंटेंस इज गेटिंग over here, and the second sentence is getting separated by this comma. So the second sentence is getting started and again you start doing analysis कि animals आपका subject है, of preposition है, उसके बाद में फिर से object, okay, और used to model, assemble verb, everyday adverb, okay, everyday adverb, there should be space over here, okay, around preposition again object, और इस object के लिए जो sentence है this is adjective clause. अल्टीमेटली आप वर्ड्स के आपस के रिलेशनशिप पे मास्टरी करते हैं और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं हिंदी में इस रूल अप्रोच के थ्रू. सो व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस अप्रोच इज
You master is that you master your analytical skills. Now, अब मैं आपको बता दूं, हम इस अप्रोच पे बिल्कुल वर्क नहीं करते. I have been helping the students work on English communication for the last 10 plus years. And for the last 10 plus years, I never ever touch upon this approach. You might be thinking कि मेरे YouTube channels पे तो मैंने grammar का free course शुरू किया है. Yes, I don't want to teach these topics. Understand, मैं आज के सेशन में आपको प्रूव करूंगा, मैं ग्रामर नहीं पढ़ाना चाहता हूं. बट स्टिल देयर आर मेनी पीपल हु से नो नो नो, वी डोंट वांट टू गो थ्रू दिस अप्रोच, वी जस्ट वांट द शॉर्टकट अप्रोच एंड वी वांट टू गो थ्रू एनालिसिस बिकॉज वी हैव टू अल्टीमेटली क्रैक द एग्जाम. इसलिए मैं एक बार ये फ्री ग्रामर कोर्स कंप्लीटली अपलोड करके इससे बिल्कुल निजात पाना चाहता हूं, इससे कंप्लीटली निकलना चाहता हूं, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको प्रूव करूंगा कि ग्रामर पैटर्न से मास्टरी का ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पे मास्टरी करने से मेटा कॉन्शियस, आपका सब कॉन्शियस में दिमाग लग जाता है. गोइंग टू प्रूव इट. सो आई नेवर वर्क ऑन दिस अप्रोच. नाउ हम जिस अप्रोच पे वर्क करते हैं, दैट अप्रोच इज देयर, उसे हम बोलते हैं यूसेज अप्रोच. नाउ आई एम गोइंग टू गिव इनफ टाइम, प्लीज पे अटेंशन. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मेक श्योर दैट यू राइट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो देखिए, यूसेज अप्रोच से हम लोग वर्क करते हैं. क्या मतलब है इसका? जब भी कोई पर्सन भाषा पे काम करना चाहता है, लैंग्वेज पे काम करना चाहता है, तो जरूरी नहीं है कि उसे रूल्स के, कॉन्सेप्ट्स के नाम पता हो. अंडरस्टैंड, जरूरी नहीं है पर्सन को, कैंडिडेट को रूल्स के, कॉन्सेप्ट्स के नाम पता हो. द वे यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल. जब भी आप हिंदी में बात करते हैं किसी से, तो जब भी आप कोई मैसेज बोलते हैं, तो क्या बैकग्राउंड में बोलने से पहले सोचते हैं कौन सी संज्ञा है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी कर्मक क्रिया है, कौन सी सकर्मक क्रिया? डू यू एवर थिंक इन द बैकग्राउंड बिफोर स्पीकिंग योर मैसेज? यू नेवर एवर डू दैट. इन द सेम वे, ठीक इसी तरीके से जब भी आप किसी लैंग्वेज पे काम करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको रूल्स के, कॉन्सेप्ट्स के नाम पता हो, लेकिन आपको इन्हीं रूल्स और कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन आपको पता होता है, जिसे हम फंक्शन भी बोल सकते हैं. कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, यूसेज, विजुअलाइजेशन इन माइंड, सबका मतलब एक ही है. दैट्स व्हाई आई हैव पुट अप द साइन इक्वल. सबका मतलब एक ही है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. जब भी मैं किसी कैंडिडेट से पूछता हूं कि क्या आपको प्रेजेंट सिंपल आता है, तो कहता है, अरे सर, प्रेजेंट सिंपल का क्यों बात करते हो? बचपन से लेके मैं तो यही पढ़ रहा हूं. जब स्कूल में था तो जुलाई में टेंथ शुरू होता था सर, और 15 अगस्त तक मेरा टेंथ चलता था. फिर टीचर छोड़ देता था, नया टीचर आता था, फिर टेंथ शुरू करता था. सर, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक मेरा पूरा जीवन टेंथ पे निकल गया. तो प्लीज सर, टेंथ की बात नहीं कर रहे हो, टेंथ तो मुझे आता है. मैं पूछता हूं कि क्या एरर स्पॉट कर सकते हो? ही सेज यस, आई कैन स्पॉट द एरर क्वाइट इजीली. क्योंकि सर, या तो टेंस पे एरर आएगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, या फिर एडवर्ब से रिलेटेड एरर आएगी, राइट? तो मैं आसानी से एरर स्पॉट कर सकता हूं. नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक अ पीस ऑफ कमेंट्री. मैंने कैंडिडेट से पूछा, क्या तुम एरर स्पॉट कर सकते हो प्रेजेंट सिंपल पे? प्रेजेंट सिंपल जानते हो? तो कहता है हाँ जानता हूं. नाउ कमेंटेटर ने कुछ बोलना शुरू किया. जस्ट इमेजिन द मैच स्टार्ट्स एंड द कमेंटेटर सिटिंग अपस्टेयर्स स्टार्ट्स कमेंट्री लाइक दिस. Well, Pathirana starts the proceedings where he makes the first ball of the first over. Oh, the beautiful ball. The ball misses the wickets. The ball gets in the hands of MS Dhoni. MS Dhoni holds the ball and throws the ball towards wickets again. Oh, the ball misses again. One run is taken between the wickets. कैंडिडेट से पूछा जाए कि क्या तुम रिपीट कर सकते हो मैसेजेस को, तो कहता है नहीं, मैं रिपीट नहीं कर सकता. क्यों भाई? सब में प्रेजेंट सिंपल था, तुम प्रेजेंट सिंपल पे एरर निकाल लेते हो, और प्रेजेंट सिंपल को अपनी जिंदगी में कैसे लगाना है ये नहीं पता चल पाता. सारे सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल था. Pathirana starts the proceedings. Starts, third party, SOS, present simple. He makes the first ball. Makes, again, present simple, SOS. The ball misses the wickets. Misses, present simple, SOS. The ball gets in the hands of MS Dhoni. MS Dhoni holds the ball. Holds, gets, sub present simple hai. One run is taken between the wickets. Is taken, is taken, is taken. Is the third form. Present simple का passive case. सारे sentences present simple के हैं. फिर हम इस प्रेजेंट सिंपल को अप्लाई क्यों नहीं कर पाते? फिर हमें मैसेज समझ क्यों नहीं आता? हम मैसेज प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाते? अंडरस्टैंड, आई एम रिवीलिंग द सीक्रेट एट द मोमेंट. हम कंप्लीट ग्रामर स्टडी कर लेते हैं, लेकिन हम कभी भी कोशिश नहीं करते कि इस ग्रामर को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है. लेट मी गिव अनदर एग्जांपल. क्रिकेट मैच चल रहा है, कमेंटेटर ने कहा, इट्स बीन अ ब्यूटीफुल शॉट, इट्स बीन अ ब्यूटीफुल शॉट, द बॉल इज गोइंग टुवर्ड्स वन बाउंड्री, 4 रन्स आर एडेड ऑन द बोर्ड. पूछा जाए कि तुम प्रेजेंट परफेक्ट जानते हो, तो कहता है हाँ जानता हूं ना, चुके हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस जानते हैं? हाँ बिल्कुल, ये भी जानता हूं, रहा है, रही रहे. कमाल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जानता है और ये मैसेज रिपीट नहीं कर सकता. इट हैज बीन अ ग्रेट शॉट, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट. द बॉल इज गोइंग टुवर्ड्स मिड ऑन बाउंड्री, सो द बॉल इज गोइंग टुवर्ड्स मिड ऑन बाउंड्री, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कमाल है. थिंक अबाउट इट, थोड़ा बुद्धि लगाइए कि हम सारा ग्रामर स्टडी कर लेते हैं, लेकिन इसको कैसे लाइफ में अप्लाई करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अप्लाई. नाउ ओके, लेट मी गिव अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. क्या मतलब है?
यूजुअली आई हैव सीन द स्टूडेंट सॉल्विंग द पैसेज दिस वे. मैंने देखा है अधिकतर स्टूडेंट्स पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं. As soon as the passage comes in front of them, what do they do? जैसे ही पैसेज सामने आया, पहला लाइन रीड करता है. ओ, नहीं समझ आया, दोबारा पढ़ता हूं, क्या पता समझ आ जाए. अभी भी नहीं आया, आगे की 2 लाइंस पढ़ के देखता हूं, क्या पता समझ आ ही जाए. बाढ़ में जाए. मैं तो क्वेश्चन पिकअप करता हूं और देखता हूं पैसेज में कहां चिपक रहा है, एंड अल्टीमेटली ही डज कॉपी पेस्ट. Oh my God, almost people do this. इसका मतलब है आज भी कॉम्प्रिहेंशन पुअर है, आज भी कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड नहीं है. And in case if anybody who wants to understand comprehension, what does it do? He just translates. And don't worry, I'm going to say something crucial about translation. Wait. So everybody who works on English language, ultimately he has to work on the application part of all grammar fundamental concepts, on application, and ultimately the application without touching translation. I'm coming to the point in a moment. Now let me make you understand the meaning of this visualization in mind. मैं सिर्फ ये इसलिए आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ so that you can somewhere determine कि yes, बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है अभी तक लैंग्वेज सीखना. मैंने कहा 99.9% लोग इसी अप्रोच से जा रहे हैं. जबकि एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानिए आप. जब भी आप ग्रामर पे मास्टरी करते हैं, व्हाट हैपेंस? आप नोटबुक ओपन करके बैठे हैं, सामने से इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनर आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा है. यू हैव ओपन द डोर ऑफ योर हेड. बाहर से इंफॉर्मेशन आ रहा है, अंदर जा रहा है, यू आर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन. जैसे ही कोई आपको डाउट आता है, यानी इंफॉर्मेशन का कोई पैकेट यहां पे अटक गया, सो द टीचर और द ट्रेनर गिव्स यू द हैमर ऑफ सॉल्यूशन एंड द पैकेट गेट्स इनसाइड. तो इंफॉर्मेशन ग्रामर सीखने में बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है. जबकि जब भी आप स्पीकिंग करना चाहते हैं या राइटिंग करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड, मैसेज अंदर से बाहर की तरफ जाता है. लुक एट इट, क्रूशियली लुक एट इट, अंडरस्टैंड. जब भी आप ग्रामर पे मास्टरी करते हैं, इंफॉर्मेशन बाहर से अंदर की तरफ आता है. जबकि आप जब भी राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं, आपके पास केवल थॉट है, उस थॉट से आपको मैसेज क्रिएट करना है, वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा. इट इज ऑल अबाउट क्रिएशन. एंड व्हाइल लर्निंग ग्रामर देयर इज नो क्रिएशन. अगर आप क्रिएशन पे मास्टरी करते हैं, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स से कि नहीं सर हम लोग तो क्रिएशन पे मास्टरी कर रहे हैं. नो, यू आर टेलिंग लाई. आप उस पे मास्टरी नहीं कर रहे हैं क्रिएशन पे, आप अल्टीमेटली ट्रांसलेशन से मास्टरी कर रहे हैं. And ultimately translation has to be killed from the back of your mind. क्योंकि आप ट्रांसलेशन से कभी लैंग्वेज बोल नहीं सकते. Let me give you an example. For example, आपका कोई कोचिंग सेंटर है. I assume your name is अभिषेक, for example. Okay, मैं अभिषेक जी की कोचिंग पे जाता हूं और क्योंकि मुझे उनके कोर्सेज के बारे में कुछ जानना है और मैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन मेथड से फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश सीख रहा हूं. सो मैं जैसे अभिषेक जी की कोचिंग पे जाता हूं, मुझे अभिषेक सर मैं आपके कोर्स के बारे में जानना, 1 मिनट रुको मैं सेंटेंस बना लूं. मैं आपके कोर्स के बारे में जानना चाहता हूं, प्रेजेंट सिंपल, चाहना, वांट. वेल आई वांट टू नो अबाउट द कोर्स एंड द फीस स्ट्रक्चर. सच ए लॉन्ग प्रोसेस. एक आइडिया हिंदी में आया, फिर आपने रूल डिस्कवर किया, फिर रूल को इनकॉर्पोरेट किया, रूल को इनकॉर्पोरेट करने के बाद में अल्टीमेटली आपने सेंटेंस फ्रेम किया और फिर 4th और 5th स्टेज पे जाके आप अपने मैसेज को प्रोड्यूस कर रहे हो, आर्टिकुलेट कर रहे हो. सच ए लॉन्ग प्रोसेस. नॉट अ सिंगल पर्सन कैन बी फ्लुएंट एंड इफेक्टिव स्पीकर. अंडरस्टैंड, इन केस इफ यू गो बाय ट्रांसलेशन अप्रोच. नाउ अंडरस्टैंड, एक और एग्जांपल आपके साथ में शेयर करता हूं, विजुअलाइजेशन इन माइंड. क्या मतलब है? मैं 2 तरीके की बातें बोल रहा हूं आपको, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में. एंड आई विल जस्ट आस्क द क्वेश्चन इन यस और नो. ऑनेस्टली यू हैव टू आंसर. टाइप 1, आप 7:30 पे अपने घर से निकलते हैं, वॉक करते हुए बस स्टैंड पे जाते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रैवल करते हैं, अपने कोचिंग के बाहर उतरते हैं और अपने कोचिंग के प्रीमाइसेस में एंट्री करते हैं, वॉक करते हुए अपने क्लासरूम तक जाते हैं, क्लास में एंट्री करते हैं, चेयर लेके बैठ जाते हैं. जब मैंने ये नंबर ऑफ सेंटेंसेस स्पीक किए तो आपके ब्रेन ने एक पिक्चर क्रिएट किया. उस पिक्चर में जैसे मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड कहा कि आप 7:30 पे अपने घर से निकलते हैं, जैसे आपने ग्रुप ऑफ वर्ड सुना, आपके ब्रेन में एक पिक्चर क्रिएट हो गया और उस पिक्चर में आप हैं, आपका रेजिडेंस है और आप उससे बाहर की तरफ आते हैं. अग्री डिसएग्री?
अग्री। लेट मी गिव अनदर एग्जांपल। मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप किया, आपने नोटिफिकेशन देखा, उस पर क्लिक किया, अब मेरा प्रोफाइल ओपन किया, मैसेज रीड किया, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, मैसेज टाइप किया और सेंड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं हिंदी के सेंटेंसेस आपको बोल रहा हूं, आपका ब्रेन सीक्वेंस में पिक्चर्स विजुअलाइज कर रहा है। इसे ही हम कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, बिकॉज यू कैन रिपीट द मैसेजेस इन योर ओन लैंग्वेज और मे बी इन द यूजिंग द सेम वर्ड्स और सेम सेंटेंसेस, बट इट इज डिफिकल्ट, बट यू कैन रिपीट द सेम मैसेजेस। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। नाउ आपको सारी बातें इसलिए समझ आती हैं बिकॉज योर ब्रेन इज क्रिएटिंग अ पिक्चर। नाउ टाइप 2, आई एम गोइंग टू स्पीक अ पीस ऑफ कमेंट्री ऑफ अ क्रिकेट मैच। ओके, सो पे वेरी क्लोज अटेंशन. See, the match is expected to be played between India and Pakistan. India has been qualified for final, but Pakistan is totally out of the tournament. But again, it's been a good chance for Pakistan to prove itself and of course to keep maintaining the intensity in cricketing world. Now let's get across to Savai Mansingh Stadium where Ravi Shastri is standing by with the toss report. Now getting down the ground, and in the ground Ravi Shastri is there. See the nice pleasant afternoon here in Jaipur. It's a toss time in the final league game before the final in this Geo Cup 2024. Well, he is Rohit Sharma as the team captain from India. He is Babar Azam as the team captain from Pakistan. He is the match referee from Zimbabwe, all in readiness. Well, Rohit, you please spin the coin. Heads is a call. Heads it is. Well, Rohit, you have won the toss, so what have you decided? Blah, blah, blah. Honestly आंसर कीजिए आप मुझे। जिस वे में आप हिंदी के मैसेजेस सुनते हैं, ब्रेन पिक्चर विजुअलाइज करता है। क्या एग्जैक्टली जब आप इंग्लिश के मैसेजेस सुनते हैं आपका ब्रेन पिक्चर विजुअलाइज करता है? यू विल से नो। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स कहेंगे कि यस विजुअलाइज करता है। नाउ यहां पे भी देखिए दो आंसर्स हैं। यहां पे मैं दो बातें कहूंगा आपसे, यहां पे दो आपके ऑप्शंस पे मैं जवाब देना चाहता हूं। किसी ने कहा कि सर मुझे बिल्कुल समझ आता है। आई अप्रिशिएट, इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग देन योर लैंग्वेज इज इंप्रूव्ड। लेकिन कभी कभी कैंडिडेट्स कहते हैं कि मुझे सब समझ आता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बात बोलते हैं कि मुझे समझ तो सब कुछ आता है बट मैं बोल नहीं पाता। Most of the working professionals, those who are not smart enough at English communication, they come up with this statement. They say कि मुझे इंग्लिश समझ में तो आता है बस मैं बोल नहीं पाता। Practically, let me tell you, समझ भी नहीं आता। How? जैसे ही कमेंटेटर ने बोला it's been a great footwork, beautiful shot, the ball is just sailing over the fence, 6 runs are red on the board. पता है क्या समझ आता है? 6 runs board, ग्रेट शॉट, बाउंड्री, वर्ड समझ आते हैं, सेंटेंस समझ नहीं आता है। क्योंकि अगर सेंटेंस समझ आया, मैसेज समझ आया तो द सेम मैसेज कैन बी रिपीटेड इजीली। अंडरस्टैंड, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ी बुद्धि लगाइए। पीपल से कि मुझे समझ सब कुछ आता है बट मैं बोल नहीं पाता हूं। समझ भी नहीं आता है। एक्चुअली टीवी चल रहा है और मैच देख रहे हैं, आप सिर्फ आइडिया लगा लेते हैं कि शायद ये बोला होगा। आप केवल वर्ड्स कैप्चर करते हैं, वर्ड्स को ग्रैब करते हैं, होल आइडिया को ग्रैब नहीं करते। अगर आप होल आइडिया को ग्रैब करते हैं तो यू कैन कम्युनिकेट। व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नॉट स्पीकिंग? थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट। सो स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, आज भी कॉम्प्रिहेंशन पुअर है। एंड लेट मी रिपीट अगेन, दोनों जगह पे ग्रामर है। कभी कभी स्टूडेंट्स टेक मी डिफरेंटली, कभी कभी स्टूडेंट्स मुझे कुछ गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ग्रामर के खिलाफ हूं। I am not at all against grammar, I'm telling you, because I also teach English grammar. मैं completely English grammar पढ़ाता हूँ इस मेथड से, लेकिन कभी भी इस रूल मेथड से नहीं पढ़ाता हूँ। So दोनों जगह ग्रामर है, बिना ग्रामर कोई लैंग्वेज नहीं है। अगर रूल मेथड से जाएंगे आप तो आप एनालिटिकल स्किल्स पे मास्टरी कर लेंगे। और स्पीकिंग में कभी भी एनालिटिकल स्किल्स, एनालिटिकल का मतलब है सेंटेंस का एनालिसिस का रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पीकिंग नेचुरली नेवर रिक्वायर्स एनालिसिस इन द बैकग्राउंड। Speaking naturally never requires analysis in the background. Think about it. So now you might be wondering कि यहाँ पे analytical skills improve होता है तो फिर यहाँ कौन सा skill improve होता है? Let me tell you, यहाँ creative skill improve होता है। क्या मतलब है creative skills का? आप सभी के पास एक thought है, उस thought को आप मैसेज में कन्वर्ट करना चाहते हो। So इस वे में, इस रास्ते पर ट्रांसलेशन नहीं लगना चाहिए। यू हैव गॉट अ थॉट इनसाइड योर हेड एंड यू वांट टू क्रिएट द मैसेज, यू वांट टू प्रोड्यूस द मैसेज यूजिंग दैट थॉट, और दैट थॉट इज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सेंटेंस सो द सेम मैसेज कैन बी इंटरप्रेटेड और अंडरस्टूड बाय द लिसनर। आपके पास केवल थॉट है और आपको मैसेज प्रोड्यूस करना है। अंडरस्टैंड, आपको मैसेज क्रिएट करना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएशन। जबकि आप किसी सेंटेंस के एनालिसिस करते हैं तो क्या करते हैं आपको मैसेज क्रिएट नहीं करना होता है। मैसेज इज ऑलरेडी क्रिएटेड, पहले से क्रिएटेड है। आपको तो उसका चंकिंग करना होता है, आपको तो उसको ब्रेक करना होगा और अल्टीमेटली उसका आपको एनालिसिस करके एरर फाइंड आउट करना होता है। थिंक अबाउट इट, दीज आर टू डिफरेंट अप्रोचेस। सो यहां पे आप मैसेज क्रिएट करते हैं, सो आपका मैसेज क्रिएशन स्किल बिल्ड होता है। नाउ
द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन आई एम गोइंग टू टेल यू। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कोर्सेज के वो हैं किलिंग ट्रांसलेशन। अंडरस्टैंड, किलिंग ट्रांसलेशन। द पर्पस ऑफ आवर English communication course is just to kill the translation in the back of the mind. Yes, I claim and I have been doing the same thing for the last 10 plus years. मैं 10 साल से claim कर रहा हूं कि जब तक आपके दिमाग में translation चल रहा है from Hindi to English, English to Hindi, not a single person can be fluent and effective speaker. Understand? So our ultimate purpose is just to kill the translation in the back of the mind. जब तक आप translation करेंगे, trust me, आप fluent speaker नहीं बन पाएंगे. And don't worry, I am going to reveal the secret. I am going to prove it कि why this happens. Using the application, using the functioning of your conscious and subconscious mind, I'm going to tell it. I'm going to tell you this, don't worry. So the first purpose is killing translation. And the second purpose is thinking in English. Yes, we have to infuse, especially I have to infuse the patterns of thinking in English inside your subconscious mind. I have to infuse the patterns of thinking in English inside your subconscious mind is the second purpose. Thinking in English possible है। कई बार कैंडिडेट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर थिंकिंग इन इंग्लिश कैसे पॉसिबल है? इंसान तो वैसे ही सोचेगा जैसे जनरली सोचता है, जैसे ऑर्डिनरीली पर्सन सोचता है वैसे ही सोचेगा, इसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज क्या करेगी? बट आई एम टेलिंग यू थिंकिंग इन इंग्लिश इज पॉसिबल। अगर आपको आंसर समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज यू विल गेट टू इन अपकमिंग क्लासेस। लेट मी टेल यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बाय ट्रैवलिंग ऑफ योर अवेयरनेस ऑन द डिफरेंट टाइम जोन्स यू पिक अप द स्ट्रक्चर एंड यू डिलीवर योर मैसेज। आपको इन द मिडिल आपको कोई हिंदी लगाना नहीं होता है। You don't have to apply any translation in this process. What do? Again, you basically do traveling of your awareness. You basically make your awareness travel on the different time zones and you pick up the structure and you deliver your message. आपको middle में हिंदी नहीं लगाना होता। Now you might be wondering कि awareness क्या है, time zone पे awareness को travel कराने का मतलब क्या है? You will get to know in upcoming classes. Don't worry. एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आप सभी को। अवेयरनेस का मतलब जानते हैं, अवेयरनेस को समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग अपनी आईज क्लोज करेंगे फॉर 1 मिनट। आई विल गिव यू सम इंस्ट्रक्शंस एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। नोबडी विल ओपन द आईज, नोबडी विल कीप द आईज ओपन। अंडरस्टैंड? इफ यू कीप योर आईज ओपन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ओके, सो एवरीबडी प्लीज क्लोज द आईज। यू कैन डू दिस। और सिर्फ मुझे सुनिएगा और मैं ये मान लेता हूं कि आप सभी की आईज क्लोज्ड हैं और आप सिर्फ मुझे सुन रहे हैं। आपकी आईज क्लोज्ड हैं और आप मुझे सुन रहे हैं एंड यू आर फॉलोइंग माय इंस्ट्रक्शंस। आप अपने सिटिंग पोस्चर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। जिस भी सिटिंग पोस्चर में आप बैठे हुए हैं, आप अपने सिटिंग पोस्चर के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं प्लीज कलेक्ट कीजिए। योर हैंड्स पोजिशन, योर लेग्स पोजिशन, योर बैक स्ट्रेट और नॉट, you're sitting comfortably or not, you're sitting on the chair, you're sitting on the floor. Try to collect information as much as possible about your sitting posture. Now try to collect the information about the room that you are sitting in. अब information collect करने की कोशिश करें about the room जिसमें आप बैठे हुए हैं। रूम कैसा दिखता है? फ्लोर में टाइल है, मार्बल है, कूलर है, एसी है या फैन है, कितनी विंडोज हैं, वॉल का कलर कैसा है? Try to collect as much information as possible about the room. अब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें about your bedroom. जिस बेडरूम में आप रहते हैं, अच्छा मैंने कंसिडर किया हुआ है कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं। ओके, नाउ अब मैं आपसे जो थर्ड पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि आपको आपका जो बेडरूम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। आप सभी को अपनी आईज क्लोज रखनी है। अब आप अपने सिटिंग अपने बेडरूम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। सिंगल बेड है, डबल बेड है, कूलर है, एसी है, फैन है। रूम में एंट्री करते हो तो लेफ्ट में वॉक करते हो फिर राइट में वॉक करते हो। स्टडी टेबल है या नहीं? स्टडी टेबल अगर है तो उस पर क्या क्या रखा है? वॉल्स का कलर कैसा है? फ्लोर में टाइल है, मार्बल है या फिर कुछ और है? अब आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। किसी पर्सन ने आपको पहली बार प्रपोज किया या फिर आपने किसी पर्सन को पहली बार प्रपोज किया, वो पर्सन कौन था? वो जगह क्या थी? आपने क्या पहना हुआ था? उसने क्या पहना हुआ था? आप कैसा महसूस कर रहे थे? अब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें
कि कोविड पीरियड में आपके एक्सटेंडेड फैमिली में, दूर की फैमिली में किसी का डेथ हो गया, वो पर्सन कौन था? जब आपको न्यूज मिला, हाउ डिड यू फील? कैसा आपने महसूस किया? उस पर्सन से आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? ओके, द लास्ट टाइम ट्राई टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर सिटिंग पोस्चर अगेन। अपने सिटिंग पोस्चर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। हैंड्स पोजिशन, लेग पोजिशन, बैक स्ट्रेट और नॉट, सिटिंग कंफर्टेबल। ओपन योर आइज। जब मैंने आपसे कहा कि आप अपने सिटिंग पोस्चर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो आपकी अवेयरनेस आपके सिटिंग पोस्चर पे आ गई। जब मैंने कहा जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो आपकी अवेयरनेस आपके बॉडी से हटके और आपके रूम पे चली गई। और जब मैंने कहा कि आपको पहली बार किसी ने प्रपोज किया है, फिर आपने किसी को प्रपोज किया, तो आपकी अवेयरनेस आपके बेडरूम से हटके उस पर्सन पे चली गई। मैं क्लियरली देख सकता था क्योंकि आपके चेहरों, आपके बहुत सारे लोगों के चेहरों पे स्माइल था। और जब मैंने कहा कि कोविड पीरियड में किसी का डेथ हो गया, तो आपके चेहरे से स्माइल गायब हो गई। इसका मतलब मुझे पता चला कि आपकी अवेयरनेस उस पर्सन से हटके दूसरे पर्सन पे चलेगी। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड, इनसाइड योर हेड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, जो भी मूव कर रहा है दैट इज अवेयरनेस, दैट इज कॉन्शियस माइंड। आपके दिमाग में जो भी एक एरिया से दूसरे एरिया पे जो ट्रैवल कर रहा है दैट इज अवेयरनेस, दैट इज कॉन्शियस माइंड। अब मेरे इस आंसर को फिर से सुनिए। बाय ट्रैवलिंग ऑफ योर अवेयरनेस ऑन द डिफरेंट टाइम जोन्स, यू पिकअप द स्ट्रक्चर एंड यू डिलीवर द मैसेज। आपको बीच में हिंदी नहीं लगाना होता। आप अपनी अवेयरनेस को डिफरेंट टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग ट्रेवल करवाते हैं और अपना स्ट्रक्चर पिक करते हैं और मैसेज डिलीवर करते हैं। आपको बीच में हिंदी नहीं लगाना होता। नाउ आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन कि थिंकिंग इन इंग्लिश कैसे पॉसिबल है। यू रियलाइज वंस यू स्टार्ट टेकिंग द क्लासेस विद इन 15-20 डेज, यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यस, थिंकिंग इन इंग्लिश पॉसिबल है। और ट्रांसलेशन को हम कंप्लीटली बैक ऑफ द माइंड से डिलीट करने की कोशिश करते हैं, और डिलीट करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, वी ट्राई टू डिलीट इट। आप कभी भी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, आप कभी भी कोई रीजनिंग नहीं लगाएंगे। अल्टीमेटली पैटर्न्स सबकॉन्शियस माइंड में इंफ्यूज करने का मतलब है कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज रिप्रोग्राम्ड। अंडरस्टैंड? So it is possible. So you have to remember these three things कि creative skill improve होता है. Ultimately you try to kill the translation in the back of the mind and you develop the patterns of thinking in English. These two purposes are there which are completely related to usage approach. हम rule approach पे work नहीं करते हैं. Rule approach के लिए मैं एक free grammar video का एक series चला रहा हूँ. Free grammar, English grammar videos मैं अपलोड कर रहा हूं। ऑलमोस्ट 170-180 के आसपास वीडियोस में अपलोड करने जा रहा हूं। एक बार मैं सारे वीडियोस अपलोड कर दूं यूट्यूब पे, उसके बाद में आई एम नॉट गोइंग टू टच अपॉन दिस रूल मेथड। अंडरस्टैंड? ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। अभी तक आपको सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या हम ग्रामर स्टडी करते हैं। यस, अनडाउटेडली विदाउट ग्रामर देयर इज नो लैंग्वेज। लेकिन हम रूल मेथड से नहीं जाते हैं, इस मेथड से जाएंगे तो एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव हो जाएगा, एनालिटिकल स्किल्स ऑफ ए सेंटेंस। ओके, और जब हम इस मेथड से जाते हैं सो अल्टीमेटली वी वर्क ऑन इंग्लिश कम्युनिकेशन, हम ट्रांसलेशन को किल करते हैं। आई थिंक सो फार एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ वी मूव ऑन। ओके, वंस अगेन we try to see the differences. Again we try to see the differences. Okay, we look at the nuances. दोनों methods के बीच में क्या differences हैं, थोड़ी सी बारीकियों को जानते हैं। This is about analytical skills and this is about creative skills. Yes, you have to create the message. You have to create the message. जबकि यहाँ पे message is already created. आपको उसके टुकड़े करने होते हैं, chunks में उसको put करना होता है और words के आपस की relationship देखनी होती है। Now this is about use and this is about usage. Now what is the difference? नाउन एक सेंटेंस में दो जगह देखने को मिलता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में दो जगह देखने को मिलता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद या फिर प्रीपोजिशन के बाद। ये सब जानना यूज है। एडजेक्टिव की पोजीशन एक सेंटेंस में दो जगह हो सकती है, बी के बाद या फिर नाउन से पहले, ये जानना यूज है। ट्रांजिटिव वर्ब का थर्ड फॉर्म बी के बाद एज एन एडजेक्टिव एक्सेप्ट हो जाता है, ये जानना यूज है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये जानना यूज है। अंडरस्टैंड? जब भी आप नाउन में एलवाई लगाएंगे तो फिर वो एडजेक्टिव बनता है, और अगर आप एडजेक्टिव में एलवाई लगाएंगे तो फिर वो एडवर्ब बनता है। ये सब जानना यूज है। हु, व्हाट और हुम का आंसर हमेशा नाउन होता है। हाउ का आंसर अगर नाउन के लिए किया जाए तो एडजेक्टिव होता है। ये सब जानना यूज है। हाउ का आंसर अगर वर्ब के लिए किया जाए तो वो हमेशा एडवर्ब होता है। ये सब जानना, तमाम तरीके के रूल्स जानना है, सब यूज है। सेंटेंस में क्या यूज है, किस पार्ट ऑफ स्पीच का ये यूज है, तो फिर यूसेज क्या है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जस्ट इमेजिन आई हेल्प यू वर्क ऑन culinary skills. मैं आपको हेल्प कर, इमेजिन कीजिए कि मैं आपको culinary स्किल सिखाता हूं, मैं हेल्प करता हूं आप लोगों को culinary स्किल्स बिल्ड करने में। culinary स्किल का मतलब होता है किचन स्किल्स। ओके,
तो आप मेरे पास आते हैं, क्लासेस लेते हैं, मैं आपको 10 इंग्रेडिएंट्स देता हूं और उन 10 इंग्रेडिएंट्स के की क्या क्या टेस्ट हैं, किस किस कॉम्बिनेशन में मिला सकते हैं, क्या क्या डिशेस आप बना सकते हैं, ये सारा मैं आपको कंप्लीट एंटायर डिटेल अबाउट ऑल दीस 10 इंग्रेडिएंट्स आई प्रोवाइड यू, सब कुछ प्रोवाइड कराता हूं। और मैं फाइनली आपसे कहता हूं कि अब मैं आपका टेस्ट लेने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू असेसमेंट प्रोसेस। मैं आपका असेसमेंट लेता हूं और आपने ट्रेनिंग लेने के बाद में असेसमेंट में स्कोर किया 95% से ऊपर, आई एम टेलिंग यू, आप यहां बैठे हैं, आप यहां बैठे हैं, यहां नहीं पहुंचे क्योंकि आपने एक भी डिश नहीं बनाया। लेट मी गिव अनदर एग्जांपल। इमेजिन कीजिए कि मैं कोई ड्राइविंग स्कूल चलाता हूं और आपको कार चलाना सिखाता हूं। आप मेरे पास कार ड्राइविंग स्किल सीखने आते हैं और मैं आपको सिटिंग इन दिस रूम, मैं आपको सारा डिटेल प्रोवाइड करवाता हूं, आपको बताता हूं कि क्या क्या कंपोनेंट्स है कार के, चेज़ी क्या है, सस्पेंशन क्या है, स्टीयरिंग क्या है, इंजन क्या है, व्हाट आर द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कार, हाउ डू दे फंक्शन, कैसे काम करते हैं, सब कुछ। आई प्रोवाइड यू ऑलमोस्ट एवरी पीस ऑफ information whatever is needed, okay, car driving के लिए जो भी जरूरी है, and then I take you through the evaluation process और आपने 95% से ऊपर स्कोर किया, अल्टीमेटली आप यहां बैठे हैं, आप यहां नहीं पहुंचे क्योंकि आप कार में नहीं बैठे। अंडरस्टैंड, यूसेज मींस उपयोग। इसका मतलब जितना भी ग्रामर है उसका उपयोग क्या है आपकी लाइफ में, उसका एप्लीकेशन क्या है, दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ओके, सो दिस इज अबाउट ब्रेकिंग, दिस इज अबाउट ज्वाइनिंग। यस, पूरे यूनिवर्स में कोई भी किसी भी मैसेज को प्रोड्यूस करने से पहले बैकग्राउंड में कभी भी सेंटेंस को ब्रेक नहीं करता। अंडरस्टैंड, जैसे ब्रेक करने लगोगे योर मैसेज विल बी स्पॉइल्ड। इट्स अबाउट साइंस, साइंस मीन्स क्लियर स्टेप्स, आर्ट मीन्स रिपीटेशन। Science means clear steps, art means repetition. So the person who is the master of any language, ultimately he is at the stage of art. He is an artist actually. आज आप हिंदी में बात करते हैं, जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं, you are the artist. Okay, on that particular language. Okay, translation kills your speaking skills. Here there is no translation, no thinking in Hindi. Okay, exam oriented approach it is, and that is the reading, writing, speaking, listening oriented approach. Yes, that is the ultimate purpose of the language. This is exam oriented. Okay, you are in imaginary world. देखो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी आप रूल अप्रोच से इंग्लिश ग्रामर को स्टडी करते हैं तो आप हमेशा इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आता है, हरी इज एक्सपेक्टेड टू फिनिश अप द वर्क इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। 4 टुकड़े कर दिए, ए बी सी डी। चलिए एरर बताइए। एरर आप बाद में बताना, आप मुझे पहले ये बताओ कि क्या आप हरी को जानते हो? नो। ये जो मैसेज बताया गया है, जो मैसेज दिया गया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, जानते हो क्या? नो। ये जो मैसेज है इसका अल्टीमेटली पर्पस क्या है, कौन कह रहा है और किसकी तरफ ये मैसेज जा रहा है और क्यों कह रहा है, क्या आप ये जानते हैं? नो। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, रूल लगाओ। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, रूल लगा लो। एंड अल्टीमेटली यू अप्लाई एनी रूल एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट सेक्शन, व्हाट पार्ट हैज एनी एरर। थिंक अबाउट इट। जितना ग्रामर के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं सब इमेजिनरी वर्ल्ड में है, इसीलिए आप इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते। इन माई अपकमिंग क्लासेस सम डे आई टॉक अबाउट देयर आर मेमोरी प्रिंसिपल्स। एक भी मेमोरी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता उस अप्रोच से, केवल एक इफ आई टॉक अबाउट प्रिसाइसली तो 5 मेमोरी प्रिंसिपल्स हैं, रिपीटेशन, एग्जैजरेशन, चंकिंग, एसोसिएशन एंड पिक्चर। उसमें से एक प्राइमरीली आप समवेयर अप्लाई करते हैं, दैट इज रिपीटेशन, नथिंग एल्स। इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, टू रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई आफ्टर स्टडीइंग इंग्लिश ग्रामर टॉपिक्स for an extended period, still people forget, भूल जाते हैं लोग। Think about it. So you are in imaginary world, and in this case you are in your own world. Yes, whenever you take my English communication program, actually this program, there are 2 programs and both the programs run for 7 to 8 months. Let me tell you कि जितना भी आप स्टडी करते हैं, everything that you study is somewhere directly or indirectly related to your own experiences. That's where you are able to retain the information inside your head. Okay, so we'll get to know this in upcoming sessions. Now, accumulating knowledge, information, and ultimately that is all about skill development. Speaking naturally accepts sentence fragments. देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं मैं जो आपको बताने वाला हूँ आने वाले सेशंस में, जिसमें आप रियलाइज करेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप कभी ग्रामर में टच नहीं करते, बिकॉज लैंग्वेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, impact created by words is just 7% as per the Mehrabian's rule of communication. And remaining 93% of your entire communication is occupied by non-verbal communication. And if you do the breakup of this, you find 55% body language and 38% tone of voice. 38% tone of voice. ये occupy करता है 38%. And you never ever touch upon in grammar. कमाल है, आपके communication का 38% हिस्सा 38%.
is tone of voice, and you never ever touch upon in grammar. Think about it. You can, in case if you want to get to know more about it, you can search on Google Mehrabian's rule of communication. Mehrabian's rule of communication. You'll get to know about it. Okay, so some facts, but hard to believe. कुछ ऐसा facts बता रहा हूँ जो it is very difficult for you to believe, but it is the fact. आपने सारी इंग्लिश हिंदी में सीख ली. जितना भी इंग्लिश आप रूल अप्रोच से पढ़ते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू आप हिंदी कॉम्प्रिहेंड कर जाते हैं, आप हिंदी बिल्ड कर जाते हैं. आई हैव गिवन यू द एग्जांपल इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द लैंग्वेज. Second, studying grammar kills your speaking skills. Yes, this is not Yeshwant, this is AJ Hogue. Okay, in his book Effortless English, this is the title of the chapter number 10. Okay. People say foreigners do not speak with grammar. It's a myth. ये एक भ्रम है. I have seen people speaking this statement कि foreigners जो Americans, Britishers अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते. आप मुझे बताइए, मैं एक रेड लाइट पे खड़ा हूँ. I am sitting on my bike. I'm standing at a red light. Okay, a beggar comes to me. एक beggar मेरे पास आता है, मुझे कहता है सर आप बहुत रईस है. You are very rich. Shall I believe? क्या मुझे मान लेना चाहिए? No, I will not accept his statement. I don't believe in his words. You know why? क्योंकि उसके हाथ में जो है उससे मुझे कंपेयर कर रहा है. He is telling you are very rich. Actually, he is comparing me with something that he has in his hand. एक बैगर मुझे कह रहा है यू आर वेरी रिच. मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि उसके हाथ में जो उससे मुझे कंपेयर कर रहा है, इसलिए मुझे रिच कह रहा है. आप मुझे बताएं, इंग्लिश अमेरिकन ब्रिटिशर्स का है या इंडियंस का है? इंडियंस का तो हिंदी है, अमेरिकन ब्रिटिशर्स का इंग्लिश है. और इंडियंस कह रहे हैं अमेरिकन ब्रिटिशर्स अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते. अच्छा, आपने 5 रूल क्या लर्न कर लिए? आप क्वेश्चन करते हैं कि उनका लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं है, उनका ग्रामर ठीक नहीं है. अरे आपने उतना एक्सप्लोर नहीं किया. जिस लेवल, जिस वे में दे पीपल यूज द लैंग्वेज, इट इज देयर नेचुरल लैंग्वेज. दे ऑर्डिनरीली यूज दिस लैंग्वेज. आप केवल रूल्स को सेंटर में रखते हुए उनकी लैंग्वेज को कंपेयर करते हो. आप व्हाट नॉनसेंस इट इज. आप ओके, आई शुड नॉट स्पीक द नेम ऑफ एनी बुक, बट अगर आप 5 साल पुराना कोई बुक उठाते हैं और आप कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, आर्टिकल, यू विल फाइंड दैट देयर आर 80-90 रूल्स. आज आप उस बुक को उठाएंगे, यू विल फाइंड अराउंड 120-130 रूल्स पर्टिकुलरली ऑन दैट टॉपिक. आप 5 साल बाद उठा लेना उसी बुक को और उस टॉपिक पे यू विल फाइंड मोर देन 200 रूल्स. अरे रोज इंग्लिश पैदा कर रहे हो क्या? आपने भी उनके लेवल का एक्सप्लोर नहीं किया. एंड लेट मी टेल यू द फैक्ट, लैंग्वेज की वैरायटीज हैं. फॉर्मल इंग्लिश है, इनफॉर्मल इंग्लिश है, स्टैंडर्ड इंग्लिश है, बिजनेस इंग्लिश है, लैंग्वेज लिटरेरी है, लैंग्वेज में डायलेक्ट्स हैं, स्लैंगी लैंग्वेज है. लैंग्वेज की कितनी वैरायटीज हैं. थिंक अबाउट इट. और अल्टीमेटली ग्रामर के सर्टेन रूल्स को ध्यान में रखते हुए वी ट्राई टू कंपेयर कि उनका लैंग्वेज अच्छा नहीं है. अरे अभी तक हमें उनके लेवल का एक्सप्लोर करना है. थिंक अबाउट इट. ओके, सो इट्स अ मिथ. Next, studying grammar is just like studying physics to be a successful football player. What an interesting statement spoken by AJ Hogue. This is not me. बहुत लोगों की आंखें खुल जाती हैं सेशन को लेने के बाद में. देखिए क्या कह रहे हैं. इंग्लिश ग्रामर पढ़ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे सक्सेसफुल फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए फिजिक्स पढ़ना है. कमाल है. अपनी फिजिक्स पे मास्टरी, फिजिक्स सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा है जस्ट टू बिकम एक्सीलेंट फुटबॉल प्लेयर. किस एंगल से हिट करूंगा, क्या इंटेंसिटी होगा, क्या स्पीड होगी, पूरा कॉन्सेप्ट फिजिक्स का लगा दिया. आप मुझे बताएं, उससे आप ये फिजिक्स स्टडी करने से आप सक्सेसफुल फुटबॉल प्लेयर बनेंगे या फिर आप ग्राउंड में 8-9 आवर्स देंगे एवरीडे तब आप जाकर सक्सेसफुल फुटबॉल प्लेयर बनेंगे? यू विल बिकम a good football player only when you give 8-9 hours, because that will take you to exactly to the art. You never have to work on science. Yes, scientific approach से किसी भी चीज को सीखने के लिए आप शुरुआत तो करते हैं, but the moment you have practiced n number of things, ultimately you start making the different combinations and permutations and you come to the stage of art. आज जितने भी so called successful लोग हैं, they all are artists. They all are artists. ओके, और जब कभी आर्टिस्ट परफॉर्म करता है सो ही नेवर डज एनालिसिस इन द बैकग्राउंड. बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहा हूं आपसे. सो दैट्स व्हाट ही सेड. इन ग्रामर यू मास्टर रिलेशनशिप अमंग द वर्ड्स एंड यू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग इन हिंदी. दो ही चीजें बिल्ड होती हैं. आई हैव डिस्कस्ड.
And the next fact is, in an English country, a kid learns comprehension first, then studies grammar, technically or mechanically. जब आपकी फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है, he or she starts communicating in Hindi. He doesn't know in background what is tense, what is संज्ञा, what is काल क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, अलंकार क्या है. He doesn't know in background, but he starts communicating in Hindi. In the same way, foreign country में कोई बच्चा पैदा होता है, he or she starts communicating in English without getting to know tenses, active, passive, modals, conditions in background. Understand? So here I just want to make the point. Here I just want you to understand one point, and the point is कि हमें लैंग्वेज लर्निंग में सबसे पहले जो बिल्ड करना होता है वो कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड करना होता है. बट हम शुरुआत करते हैं नाउन, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव से, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब से शुरुआत करते हैं. हम ऐसा क्यों करते हैं? जबकि लैंग्वेज नेचुरल एक्विजिशन में, लैंग्वेज एक्वायरिंग में यू अंडरस्टैंड कि कभी भी बैकग्राउंड में किसी रूल का रिक्वायरमेंट नहीं है. मैं आपको एक रिसर्च बताऊंगा इन अपकमिंग क्लासेस, रिसर्च बाय ए लिंग्विस्ट एंड हिज नेम इज क्रासिन, एंड यू विल गेट टू नो कि क्या कमाल के सीक्रेट्स उन्होंने ओपन किए हैं कि जब आप रूल अप्रोच से जाते हैं सो आप अपने लैंग्वेज को कंप्लीटली स्पॉइल कर लेते हैं. यू विल गेट टू नो. आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस रिसर्च समडे, डोंट वरी. ओके, नाउ वी कम टू द डिफरेंस. सी द डिफरेंस बिटवीन वे ऑफ ग्रामर. ऑलवेज अंडरस्टैंड, हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रामर, आई एम टॉकिंग अबाउट वे ऑफ ग्रामर. मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट वे ऑफ ग्रामर. मैं ग्रामर के तरीके पे बात कर रहा हूं, मैं ग्रामर के ऑपोजिट या अगेंस्ट में नहीं हूं. आई ऑल्सो टीच इंग्लिश ग्रामर, अंडरस्टैंड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वे इंग्लिश ग्रामर इज टॉट थ्रू ट्रेडिशनल पैटर्न. सो दोनों में क्या डिफरेंस है? यू ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू इट, आप ऑलरेडी देख चुके हैं. द वे ऑफ लर्निंग ग्रामर इज, इट्स ऑल अबाउट नोइंग रूल्स, रीजनिंग ऑफ इंग्लिश आप ऐसे बोल सकते हो, एप्लीकेशन, फंक्शन, कॉम्प्रिहेंशन सब मिसिंग है, अनेबल टू सॉल्व द पैसेज आफ्टर नोइंग द रूल्स, ये भी आपके साथ में होता है. दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स. ओके, ओनली कॉम्प्रिहेंशन ऑफ हिंदी गेट्स इंप्रूव्ड. यस, इंग्लिश के रूल्स आप हिंदी इंप्रूव कर जाते हैं, हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव कर जाते हैं. ESL स्किल्स आर ऑल अबाउट, ESL मींस इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज. जिसे आप स्पोकन इंग्लिश बोलते हो, वर्ल्ड वाइड इस स्किल सेट को जिस नाम से जाना जाता है, दैट इज इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज. ओके, सो ESL skills are all about usage of rules, the application, applying these rules in your everyday life without touching translation is something that you have to get a craft on. Okay, now इसमें application, function, comprehension, experiment, usage, visualization in mind or visualizing information in mind, everything is present. Understand? There is a difference between these two approaches, and I have given you detailed explanation, detailed analysis. Now, one more interesting question. देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे बात करने जा रहा हूँ और आपको I need your undivided attention because it's a big question. बहुत सारे इस क्वेश्चन को सुनकर सकपका जाते हैं. They are not able to hold their temper. बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स इस क्वेश्चन को देखकर they lose their temper. Understand? How does that happen? Let me tell you. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं कि व्हाई ग्रामर एक्सपर्ट्स आर नॉट फ्लुएंट एंड इफेक्टिव स्पीकर्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बाय द फंक्शन ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. बहुत अच्छे से समझिएगा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का रोल क्या है लैंग्वेज लर्निंग में. आज मैं आपको ये बता दूंगा कि जब भी आप किसी भाषा पे कमांड करना चाहें तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का रोल क्या है. नाउ सबसे पहले समझते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है. देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आपकी अवेयरनेस अलग अलग टाइम जोन्स पे, अभी मैंने आपको बताया कि आपकी अवेयरनेस एक दिमाग में एक एरिया से दूसरे एरिया पे ट्रैवल करती है, उसे कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वही अवेयरनेस है. तो अवेयरनेस ही आपका कॉन्शियस माइंड है. मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप अपने जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कोचिंग में आप स्टडी करते हैं, ट्राई टू रिकॉल द एंट्रेंस और द रिसेप्शन एरिया, तो आपकी अवेयरनेस उस रिसेप्शन एरिया पे पहुंच गई, उस एंट्रेंस पे पहुंच गई. और मैंने आपसे कहा कि आप जिस बेडरूम में रहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो आपकी अवेयरनेस उस रूम पे पहुंच गई. और ये कहां हो रहा है? ये जो भी ट्रैवल हो रहा है ये इनसाइड योर हेड हो रहा है. तो दैट इज कॉन्शियस माइंड, दैट इज अवेयरनेस. ऐसे समझ सकते हैं, जब आप रात में सो जाते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता है. यू नेवर नो कि कहां क्या चल रहा है. जो कुछ भी आपके दिमाग में, जो भी ड्रीम्स आपके दिमाग में आते हैं, वो सब अनकॉन्शियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं. आई विल टॉक अबाउट दिस some other day, and this is going to be very interesting. Today I'm not going to talk about the concepts of NLP. I'm not getting into that. Okay, don't worry. So conscious mind, conscious mind का आपको मीनिंग समझ आया. It's all about awareness. Okay. Now subconscious mind is basically the storage. जैसे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज है जिसमें डेटा स्टोर होता है सेक्टर्स पे, इन द सेम वे आपके दिमाग में जहां डेटा स्टोर होता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है. एंड लेट मी टेल यू, इफ आई जस्ट मेक अप सम नंबर्स just for your explanation, 10% and 90%. So almost I'm just making up the numbers for your understanding. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए केवल नंबर्स मेक कर रहा हूं. ऑलमोस्ट. So 10% कॉन्शियस माइंड एंड 90% सबकॉन्शियस माइंड. नाउ अब एक प्रॉब्लम को एड्रेस करता है. मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम को एड्रेस करता हूं, एंड द प्रॉब्लम इज
प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप इंग्लिश में कोई बात करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप इंग्लिश में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तो आपके साथ में क्या होता है, लेट मी टेल यू। जब तक आपके पास में दिमाग में थॉट है, तब तक आपकी जुबान से सेंटेंस प्रोड्यूस नहीं होता, और जैसे ही आप उस सेंटेंस को प्रोड्यूस करने लगते हैं, व्हाट हैपेंस विद यू, जब आपकी अवेयरनेस, जब आपका कॉन्शियस माइंड जब सेंटेंस फ्रेमिंग पे आता है कि अच्छा अच्छा सेंटेंस ऐसे ऐसे बनेगा, तो द मोमेंट योर अवेयरनेस कम्स ऑन टू फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस, उस मोमेंट पे आपके दिमाग से थॉट गायब हो जाता है। जब आप थॉट को रिकॉल करते हो तो उस मोमेंट पे आपको ये नहीं पता होता कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा, सेंटेंस कैसे बनेगा। दिस हैपेंस विद ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। ऐसा होता क्यों है? द आंसर इज, द प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इज when you try to frame the structure for the message, picture disappears. When you try to recall the picture, the structure disappears. This happens. Reason क्या है? Reason ये है कि conscious mind एक बार में एक ही जगह रहता है। Let's understand this how it is. इमेजिन कीजिए कि आपके फादर आपको कार ड्राइविंग सिखा रहे हैं, और आप जानते हैं फादर कार ड्राइविंग कैसे सिखाते हैं। सो यू आर सिटिंग एट द ड्राइवर सीट और फादर आपके जस्ट पास में बैठे हुए हैं। सो फादर आपसे कह रहे हैं कि बेटा एंगल मैनेज करो। तो जिस मोमेंट पे आप एंगल मैनेज कर रहे हो, उस मोमेंट पे आपकी अवेयरनेस एंगल पे, फिर फादर ने कहा कि क्लच प्रेस करो, तो आप कहते हैं कि अच्छा क्लच ये है। तो जिस मोमेंट पे आपकी अवेयरनेस क्लच पे आती है, उस मोमेंट पे आप ये भूल जाते हैं कि गाड़ी का एंगल किधर जा रहा है, गाड़ी किधर जा रही है, आपको नहीं पता होता। फिर फादर ने कहा गियर शिफ्ट करो, तो आपके फादर, जो आप कहते हैं अच्छा गियर ऐसे शिफ्ट करना है, सेकंड गियर में ऐसे, ओके ऐसे होगा। तो जब आपकी अवेयरनेस गियर शिफ्टिंग पे, उस मोमेंट पे आप भूल गए क्लच के साथ क्या करना है या गाड़ी किधर जा रहा है। फादर ने कहा एंगल मैनेज करो, द मोमेंट यू स्टार्ट मैनेजिंग द एंगल, आप ये भूल जाते हैं क्लच ब्रेक के साथ क्या करना है। यस, दिस हैपेंस विद यू। इसका मतलब है कॉन्शियस माइंड एक बार में एक ही जगह पे रहता है। नाउ उसके बाद में मान लीजिए आपने 5 इयर्स तक कार ड्राइविंग किया, 5 इयर्स तक, उसके बाद में आपका कंडीशन ये होता है, आफ्टर 5 इयर्स जब आपने 5 इयर्स तक ड्राइविंग किया, उसके बाद में आपका कंडीशन ये है, यू आर ओवर द फोन एंड यू आर टॉकिंग टू समबडी, से yes it was a great session, fantastic, I got to know great insights about it, I'll talk about it later in detail, yeah it was interesting, yeah I'll talk to you later, bye। जिस मोमेंट पे आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपकी अवेयरनेस कहां है? फोन पे। और आपका गाड़ी चल रहा है, ये कहां से ऑपरेट हो रहा है? नाउ इट इज कमिंग फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि 5 इयर्स तक आपने कार ड्राइविंग किया, पैटर्न स्टोर हो गया। लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेटा स्टोर होता है रिपीटेशन से। द मोर यू रिपीट, द डेटा इज स्टोर्ड ऑन द सेक्टर्स, अंडरस्टैंड, आपके मेटा कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में डेटा रिपीटेशन से स्टोर होता है। सो आपने 5 इयर्स तक कार ड्राइविंग किया तो पैटर्न स्टोर हो गया। उसके बाद में जब आप फोन पर बात कर रहे हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड फोन पर है, और आपका कार का फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये समवेयर कौन कर रहा है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। जब आप रात में सो जाते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता, लेकिन स्टिल आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, क्योंकि आपकी धड़कन चल रही होती है, आपका ब्लड फ्लो हो रहा होता है, आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है। इट इज वेरी पावरफुल। लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर इसमें एक बार पैटर्न स्टोर हो गया तो इसको बदल पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जिन लोगों के बैड बिहेवियर बिल्ड हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर्स नहीं करते, उनका ट्रीटमेंट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर्स करते हैं। वो क्या करते हैं? उनके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, उसमें नए पैटर्न्स इन्फ्यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? सो कॉन्शियस माइंड एक बार में एक ही जगह रहता है। नाउ लेट मी गिव अनदर एग्जांपल। मान लीजिए आप रात में अपने बेड में जाते हैं, सो आपको सोना है, तो यू गो टू योर बेड अराउंड 10 o'clock एंड यू स्विच ऑफ द लाइट, यू लाई ऑन द बेड, बट एज सून एज यू गेट ऑन टू द बेड, you do not fall asleep. Everybody knows the moment we get onto the bed, we do not fall asleep. Bed में लेटते ही नींद नहीं आता. It takes some time. So you are lying on your bed, and one interesting idea comes to your mind. कोई एक interesting idea आपके दिमाग में आता है और आपको लगता है कि मुझे इस आइडिया को लिख लेना चाहिए. I may forget this idea. जैसे मैं कल सुबह उठूंगा तो हो सकता है मैं इस आइडिया को भूल जाऊं. So what I do, I just write it. तो मैं इसको लिख लेता हूं. तो what do? You sit up, you switch on the light, you open the laptop. Imagine कीजिए कि आपका टाइपिंग स्पीड नहीं है. तो देखिए आपके साथ क्या होता है। जब तक आपके पास में वो आइडिया है, तब तक आपको ये नहीं पता कि कौन से फिंगर से कौन सा की प्रेस होगा। फिर जैसे ही आपने इस आइडिया को लिखना शुरू किया, इट इज वेरी क्रूशियल आइडिया, वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, वेयर इज आई। जिस मोमेंट पे आपके फिंगर्स कीज ढूंढ रही हैं, उस मोमेंट पे आपको ये नहीं पता कि आपका आइडिया क्या है, आपका थॉट क्या है। जिस मोमेंट पे आप थॉट को रिकॉल करते हैं, उस मोमेंट पे आप ये भूल गए कि कौन से फिंगर से कौन सा की प्रेस होगा। या सुनो, क्योंकि कॉन्शियस माइंड एक बार में एक ही जगह रहता है। नाउ आपने 5 इयर्स तक टाइपिंग किया, उसके बाद देखिए क्या होता है। यू आर टाइपिंग when you try to frame the structure। आप मुझे बताएं, कॉन्शियस माइंड कहां है? कॉन्शियस माइंड टेक्स्ट पर है, और कौन से फिंगर से कौन सा की प्रेस हो रहा है, ये कहां से आ रहा है? सबकॉन्शियस से, क्योंकि आपने 5 इयर्स तक टाइपिंग किया, पैटर्न स्टोर हो गया है। अंडरस्टैंड? कॉन्शियस माइंड एक बार में एक ही जगह रहता है। नाउ लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल। इमेजिन कीजिए कि आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और आपको रिजल्ट अपने फादर को बताना है, एंड यू आर सुपर एक्साइटेड, और आप अपने फादर से हिंदी में बात करते हैं।
तो जैसे आपके फादर शाम को घर आते हैं, आप सिर्फ ये प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन को आप इस वे में प्रोसेस करते हैं, आप सिर्फ ये प्रोसेस करते हैं कि मुझे फादर को मैसेज क्या डिलीवर करना है, मुझे क्या क्या बातें बोलनी है फादर को, क्या क्या मैसेजेस मुझे उनको बोलने हैं। आप कभी भी इस पर एक्सरसाइज नहीं करते कि जो भी मैं बातें बोलूंगा वो सेंटेंसेस हिंदी में कैसे बनेंगे। ये आप इसलिए एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में हिंदी के पैटर्न्स स्टोर्ड हैं, क्योंकि आप बचपन से हिंदी बोल रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू द फैक्ट। अब आपको यह सीक्रेट पता चल रहा है कि ऐसा क्यों होता है। इमेजिन कीजिए, आपने बचपन से लेकर आज तक अगर रूल से स्टोर कर लिया अपने सबकॉन्शियस में, आपने रूल पैटर्न से मास्टरी किया इंग्लिश पे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में केवल रूल से स्टोर्ड है। और जब भी आप कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलने नहीं देता है। योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट लेट यू स्पीक इन केस इफ यू वांट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में रूल्स स्टोर्ड है। अंडरस्टैंड? अरे अगर आपके पॉकेट में ₹10 का नोट है तो फिर आप ₹100 नोट कैसे निकाल सकते हैं? इट इज इंपॉसिबल। तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर रूल्स स्टोर्ड हैं तो वो आपको कभी बोलने नहीं देगा। इसीलिए क्या होता है, जिस भी कैंडिडेट ने रूल पे मास्टरी किया, व्हाट हैपेंस विद हिम, जब भी वो कोई एक मैसेज बोलने की कोशिश करता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे बोलने इस वे में नहीं देता, क्योंकि सेंटेंस बोलने से पहले, बाद में, या फिर ड्यूरिंग स्पीकिंग द सेंटेंस समवेयर आप सोचते हैं, अरे मैंने जो इंग्लिश का सेंटेंस बोला है इसमें मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कोई प्लूरल वर्ब तो नहीं लगा दिया, ओ मैंने कहीं प्रॉपर नाउन से पहले कहीं आर्टिकल तो नहीं रख दिया। तो आप मैसेजेस बोलना चाहते हैं लेकिन आप फ्लुएंटली इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि जो सबकॉन्शियस में है वही रिट्रीव हो जाता है और वो नहीं बोलने देता, और वो एनालिसिस है। थिंक अबाउट इट। मेरी इस बात को, इस वीडियो को वापस से थोड़ा सा प्ले करके फिर से सुने। यू विल गेट टू नो द फैक्ट, इफ you have stored rules in your subconscious mind, it will never ever let you communicate fluently in English. आप बोलना चाहते हैं, आप फ्लुएंसी के साथ, आप रूल रिकॉल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी रिकॉल होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लुक एट द स्क्रीन। आई विल कम बैक टू द स्लाइड इन अ मोमेंट। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्क्रीन पे जो भी लिखा है उसको एक बार रीड करें, जिससे कि आप रियलाइज करेंगे। आपके लिए मैं तो रीड कर सकता हूं, लेकिन आप पहले से रीड करेंगे। यू विल पॉज द वीडियो, यू विल रीड द एंटायर स्क्रिप्ट, ओके, द कंटेंट व्हिच इज रिटन ऑन द स्क्रीन। और उसके बाद में अब मैं इसको इसलिए रीड कर रहा हूं सो दैट because I'm just making this video, so you will understand. The phenomenal power of the human mind, according to a research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and the last letter be in the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without a problem. पता है इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? आप वो रीड कर गए जो यहां लिखा हुआ नहीं है। जो यहां लिखा नहीं है आप वो बोल गए। आपने कभी भी फिनोमिनल वर्ड एक्सपीरियंस नहीं किया। आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिनोमिनल वर्ड रखा हुआ था, स्टोरेज में जो वर्ड था वो फिनोमिनल वर्ड था, और यहां कुछ और लिखा है, फिनोमिनल समथिंग लाइक दैट। लेकिन आपके जुबान पे वही आया जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में था, जो आपके स्टोरेज में था। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके स्टोरेज में ये वर्ड्स थे: ह्यूमन, माइंड, अकॉर्डिंग, रिसर्च, यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, फिनोमिनल। इसका मतलब है जो सामने लिखा है वो आप रीड नहीं कर पाए। आपने सिर्फ वो रिट्रीव किया जो आपके सबकॉन्शियस में रखा है। इन द सेम वे आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने रूल्स डाल लिए, ट्रस्ट मी, आपको कभी बोलने नहीं देगा। इसीलिए जो जितना ज्यादा रूल्स पे मास्टरी करता है वो उतना ही फ्लुएंसी स्पॉइल कर देता है। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। Let me go back to my previous slide. I was trying to tell you something interesting. देखो क्या मैसेज होगा, चाहे आप किसी भी भाषा में बात करें, किसी भी लैंग्वेज पे बात करें, मैसेज क्या होगा, ये ऊपर वाले ने ह्यूमन माइंड का हार्ड वायरिंग कुछ ऐसा किया है कि जिस भी भाषा में आप बात करते हैं, मैसेज क्या होगा ये हमेशा कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है, या आपकी अवेयरनेस डिसाइड करती है कि मैसेज क्या होना है, क्या दिया जाना है। ओके, और जो भी मैसेज दिया जाना है, द मैसेज दैट हैज टू बी डिलीवर्ड इज टू बी मेड, उसका स्ट्रक्चर क्या होना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना है, ये हमेशा सबकॉन्शियस माइंड से आता है। तो अगर बचपन से लेके आज तक अगर आपने रूल्स स्टोर किए हैं, थिंकिंग इन इंग्लिश के पैटर्न्स अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है, ट्रस्ट मी, you will not be able to communicate in English. That is why it is our prime responsibility to infuse the patterns of thinking in English. यही ट्रेजेडी है, सभी के साथ में यही केस है। आज आपको पता चला होगा स्टूडेंट्स और लर्नर्स, माय डियर लर्नर्स, कि लैंग्वेज पे हम इतना ग्रामर पढ़ते हैं लेकिन लैंग्वेज पे कमांड नहीं हो पाता।
know the reason behind. Okay, just 90%, 10% approximate data. Okay. So welcome to the world of no rule English. So students, आज के सेशन में हमने जाना कि कोई पर्सन इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड क्यों नहीं कर पाया उसे इतने लंबे समय तक पढ़ने के बाद भी। अपनी जिंदगी का 1/3 पार्ट आप लगाते हैं लैंग्वेज सीखने में, 15-20 ईयर्स आप इंग्लिश पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज कोचिंग्स में, फिर भी लैंग्वेज पे कमांड नहीं कर पाते क्योंकि हम यूसेज मैथड को कभी फॉलो नहीं करते। दिस इज वॉट इज समथिंग दैट यू गॉट टू नो टुडे। और इसका ये जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है, ये जो हमारा सेमिनार होता है, ये 2 फेजेस में कंडक्ट होता है। आई हैव कवर्ड द फर्स्ट फेज टुडे, और जो सेकंड फेज है इसका, उस पर हम बात करते हैं कि हम लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं। आज मैंने कैसे पे बात नहीं किया, आज मैंने केवल वाई पे बात किया कि वाई कुडंट यू लर्न इंग्लिश इवन आफ्टर स्टडीइंग इट फॉर सो लॉन्ग पीरियड, फॉर सो लॉन्ग। ओके, एंड इन द नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि आप लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं, कहाँ हैं, कैसे कहाँ जाना है और रास्ता क्या होगा, वॉट एवर लेवल यू हैव प्रेजेंटली, बट in order to reach to proficient level, what is the way, what is the syllabus, everything you will get to know in terms of how कैसे सीख सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं I am going to discuss in the next session. So that's it for today. आज के लिए इतना है students. In case if you've got any question, you can type your question in the comment box. The moment I get the question, I'll try to answer the question in the next video or in upcoming videos. So आज के लिए इतना ही. Thank you very much. Hare Krishna.